بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولز کاٹیج میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے محبت روشنی ہے اور اس کی رائٹر ہے نادیہ احمد۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ فٹ پاتھ پہ بازار مصر کا گمان تھا، کپڑوں سے جھلکتے اڑیاں بدن، سینے کو ہلاتی کولوں کو مٹکاتی وہ ہوا کی بیٹیاں اپنی اداؤں سے گاہکوں کو ترغیب دے رہی تھیں۔ جنس کے بازار میں بولیاں لگ رہی تھیں، کیا حشر برپا تھا۔ یہاں رنگ و نسل کی تمیز نہیں تھی، بس ہوس ہر شے پہ حاوی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف ٹیکسیوں کی لمبی قطاریں تھی، سروس لین میں گاڑیاں رینگ رہی تھیں، گاڑیوں کے شیشے سے سر نکالے کچھ لوگ حریص نظروں سے ان عورتوں کو دیکھ رہے تھے۔ ریٹ طے ہو جاتا تو وہ اسے اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے۔ رات کے 10 بجے شہر کی ان سڑکوں پہ رات جوان تھی۔ یہ شہر کا ریڈ ڈیڈ لائٹ ایریا نہیں بلکہ مشہور کاروباری مرکز ہے، جہاں دن کی روشنی میں لاکھوں کروڑوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ سڑک پہ ٹریفک جیم اور سب وے اسٹیشن پہ لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، مگر رات کو اس سڑک پہ بنے چند مشہور کلبوں میں زندگی کی ایک اور ہی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس مصنوعی دنیا میں برہنہ جسم کی نمائش ہوتی ہے، عورتوں کی عصمت کا سودا ہوتا ہے۔ کلب رات 2 بجے بند ہو جاتے ہیں اور جو کلب میں کسی کے ساتھ حق نہیں کر پاتی وہ سڑک پہ جمع ہو جاتی ہے، پھر کم قیمت پہ رات گزارنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ خالد بن ولید روڈ پہ بنے ان کلبوں کے باہر اس وقت بھی روشنیاں جلملا رہی تھیں۔ نشے میں ڈولتے ہوس میں ڈوبے لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ سروس لین بھی اسی رش سے پر تھی۔ بہت سی افریقی، ایشیائی اور عرب لڑکیاں اپنی قسمت آزمانے یہاں کھڑی تھیں۔ یہاں سب گاہک نہیں تھے، چند مفت خور ایسے موقعوں کا مزہ لینے بھی وہاں سے گزرتے ہوئے اپنی گاڑیوں کی رفتار آہستہ کر لیتے۔ ویسے تو یہ سب خلاف قانون ہے، مگر پولیس اس وقت یہاں کم ہی پائی جاتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پروفیشنل ہوکرز کی تعداد بہت کم ہے، بلکہ یہ زیادہ تر وہ لڑکیاں ہیں جو دن میں چھوٹی موٹی نوکریاں کرتی ہیں اور رات میں یا ویکینڈ پہ اچھے ٹائم پاس کی غرض سے اور کچھ اضافی پیسے کمانے کے لالچ میں یہاں موجود ہوتی ہیں۔ دبئی سنگل کمیونٹی کے لیے مشہور بھی ہے اور بدنام بھی۔ اپنی معمولی سی تنخواہ سے اپنے خواب پورے کرنا تو دور کی بات، وہ اس ہائی لائف دبئی کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، جو اس شہر کی سب سے بڑی کشش ہے۔ ایسے میں اگر کلب میں لڑکیوں کی فری انٹری اور فری ڈرنک کی آفر سے فائدہ اٹھایا جائے تو کیا برا ہے۔ اسے اس شہر میں رہتے 2 سال ہو چکے تھے اور اس ہوٹل کو وہ دن میں 2 بار دیکھتی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس عالیشان عمارت کو اندر سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بلڈنگ باہر سے بھی قابل ستائش ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا یہ اندر سے اتنا عالیشان ہوگا۔ بلا شبہ یہ آرکیٹیکچر کا نادر نمونہ تھا۔ وہ عمارت جتنی شاندار باہر سے نظر آتی تھی، اس کا انٹیریئر اس سے زیادہ مبہوت کر دینے والا تھا۔ لابی میں اس وقت کافی لوگ تھے جو اسے سرسری نگاہ سے دیکھ کر آگے چلے گئے۔ کلب میں داخل ہوتے وقت اس کا دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اگر اس وقت وہ مجبور نہ ہوتی تو کبھی اس جگہ قدم نہ دھرتی۔ قیمتی ٹائل فلور پہ دھیمے قدموں سے چلتی وہ اس ہوٹل سے ملحقہ کلب میں داخل ہو گئی تھی۔ اندر کا ماحول اس کی سوچ سے زیادہ ہیجان انگیز تھا۔ اس کی نظریں لوگوں کے ہجوم میں سحرش کا تعاقب کر رہی تھیں اور پھر وہ اسے ڈانس فلور پہ نظر آ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی، گھٹنے سے اونچا رائل بلو سلیو لیس لباس اور چہرے پہ انتہائی ڈارک میک اپ لگائے سحرش پھولے ہوئے سانس کے ساتھ اس کی طرف آئی۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے۔ اب اگر کلب آ ہی رہی تھی تو کچھ حالت بھی سنوار لیتی۔ اسے لے کر کلب سے باہر جاتے ہوئے سحرش نے تمسخر سے کہا۔ سیاہ ٹاپ اور بلیک جینس میں سر پہ سکارف اوڑھے وہ اس ماحول میں پوری طرح مس فٹ تھی۔ کیا خرابی ہے میرے حلیے میں سحرش؟ وہ اس کے مذاق اڑانے پہ کچھ شرمندہ ہو کر بولی۔ سحرش اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر تیز قدم اٹھاتی چلتی جا رہی تھی۔ اس کا رخ ریسٹ روم کی طرف تھا۔ اب چونکہ کچھ وقت تمہیں یہاں میرے ساتھ گزارنا ہے تو پلیز یہ سکارف اتار دو۔ اس کے سر سے سکارف کھینچ کر اتارتے ہوئے اس نے کلپ میں جکڑے اس کے لمبے سیاہ بالوں کو کھول دیا تھا۔ اپنے پرس سے ایک لپسٹک نکال کر اس نے زبردستی اس گہری سرخ لپسٹک سے اس کے ہونٹوں کو رنگ دیا۔ میں نہیں کرتی میک اپ اور پلیز میرا سکارف واپس کرو، مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ اس کی حرکتوں پہ اپسیٹ ہوتی وہ اپنے بال باندھنے لگی۔ دیکھو، اگر تمہیں میرے ساتھ یہاں کچھ وقت رہنا ہے تو اپنا حلیہ میرے مطابق کرنا ہوگا۔ اب تمہاری بدولت میں اپنی فرینڈز کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے 2 ٹوک لہجے پہ لب کاٹتے اس نے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ جمی کب تک آئے گا؟ وہ واپس کلب کی طرف جاتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ بس آتا ہی ہوگا، ابھی اتنا وقت نہیں ہوا، سحرش نے لاپرواہی سے کہا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ اسے ایک بار سٹول پہ بیٹھنے کا کہہ کر دوبارہ ڈانس فلور پہ چلی گئی تھی۔ بے دلی سے وہ کلب میں بیٹھی ہوئی تھی، جہاں رات کے اس پہر میلے کا سا سما تھا۔ تیز آواز میں کانوں کو چیرتا میوزک اور لوگوں کا ہجوم، اسے وہاں بہت گھٹن ہو رہی تھی۔ یہاں لیڈیز کی نہ صرف انٹری فری تھی بلکہ اندر انہیں ڈرنک بھی مفت سرو کیا جاتا تھا اور مردوں کو کافی مہنگی ادائیگی کرنا پڑتی، جس کی وجہ خالصتاً کاروباری تھی۔
جس کی وجہ خالصتاً کاروباری تھی۔ لڑکیوں کے چکر میں زیادہ سے زیادہ مرد وہاں آتے تھے مچھلی پکڑنے کے لیے، جیسے بیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے ایسے ہی ان کلبوں میں عورت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ سہمی ہوئی الگ تھلگ سی بیٹھی تھی جب ویٹریس اس کے پاس ڈرنک لے کر آئی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ وہ کندھے اچکا کر حیرت سے وہاں سے چلی گئی۔ وہاں اکثر لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ تھیں، جو سنگل تھی وہ اپنا پارٹنر تلاش کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے بہت سے مردوں کو دوسری عورتوں کو ڈانس کی پیشکش کرتے دیکھا۔ وہ خاموشی سے اس سنجان ماحول میں بیٹھی تھی۔ اسے یہ سب دیکھ کر وحشت ہو رہی تھی۔ وہ وہاں مس فٹ تھی۔ اس شور و غوغا سے اس کے اعصاب پہ دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ 12 بجے کے بعد میوزک کا موڈ بدل جاتا ہے۔ اب نان سٹاپ میوزک شروع ہو چکا تھا۔ میوزک کا ٹیمپو بدلا تو لوگوں کا جوش و خروش بھی عروج پہ تھا۔ ڈانس فلور پہ اس وقت طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ نشے میں مدہوش بے ہنگم ناچتے لوگوں سے اسے وحشت ہو رہی تھی۔ میوزک کے شور سے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ بہت دیر تک صبر سے وہ اس بے ہنگم اور بیہودہ شور کو برداشت کرتی رہی، لیکن جب اس کا ضبط ختم ہو گیا تو وہ وہاں سے اٹھ کر ایک بار پھر سہرش کے پاس چلی گئی تھی۔ میں اگر مزید کچھ دیر یہاں بیٹھی تو پاگل ہو جاؤں گی، اس نے چلاتے ہوئے سہرش سے کہا۔ میں چیک کرتی ہوں جمی اب تک کیوں نہیں آیا۔ تم ایسا کرو اوپر روم میں چل کر بیٹھو، تب تک میں جمی کا پتہ کرتی ہوں۔ کلب سے نکل کر سہرش اسے ہوٹل روم کی طرف لے آئی۔ ایک کمرے کے سامنے رک کر اس نے کارڈ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ کارڈ کو اس نے دیوار پہ لگے سوئچ میں پھنسایا تو کمرہ روشن ہو گیا۔ تم یہاں آرام سے بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ سہرش اسے کمرے میں بٹھا کر واپس جا رہی تھی۔ یہ کس کا کمرہ ہے سہرش؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ پائی۔ میری فرینڈ کا کمرہ ہے، آج ہی بینکاک سے آئی ہے، چند دن گھومنے پھرنے، پچھلی بار آئی تھی تو ہماری اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ خود اس وقت نیچے کلب میں ہے، تم بے فکر ہو کر یہاں بیٹھو، میں جمی کا پتہ کرتی ہوں۔ اسے مطمئن کرنے کے بعد سہرش اپنے فون پہ کوئی نمبر ملاتی کمرے سے نکل گئی۔ وہ خاموشی سے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے کچھ اٹتی نگاہ کمرے میں ڈالی۔ یہ کمرہ نہیں، ایک سویٹ تھا، جہازی سائز، بیش قیمت بیڈ اور میچنگ کاؤچ، قیمتی لیمپ سے چلکتی دھوتیا لائٹ، وہاں منی بار بھی تھا۔ اچانک لاک کھلنے کی آواز پہ اس نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ بہت ہینڈسم اور خوش شکل تھا۔ اس کی عمر 30-31 سال کے قریب تھی۔ گندمی رنگت اور پرکشش ذہین آنکھیں اس کی شخصیت کو اور بھی متاثر کن بنا رہی تھی۔ اس کی شخصیت اتنی پرکشش تھی، اسے دیکھ کر کوئی بھی عشق میں گرفتار ہو سکتا تھا، لیکن وہ اسے دیکھ کر بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ ہوٹل لابی سے پارکنگ ہال تک آتے شاید صدیاں بیت گئی تھی۔ قدم بوجھل تھے یا وقت تھم گیا تھا، یہ راز وہ جان نہیں پایا تھا۔ آج کا پورا دن خوشگوار گزرا تھا، اس لیے وہ بہترین موڈ میں تھا۔ صبح 11 بجے وہ لاہور آیا اور پھر اس نے اپنی زندگی کی بیسٹ شاپنگ کی تھی، اور آج ہی اس نے اپنے بزنس کی سب سے بڑی ڈیل سائن کی۔ سردیوں کی پہلی بارش کے بعد اس کا موڈ اور بھی اچھا ہو گیا۔ ویسے بھی کچھ عرصے سے موسموں کا تغیر اس کے دل پہ اثر انداز ہونے لگا تھا۔ اپنے امریکی دوست کو ساتھ لے کر وہ اس مقامی 5 اسٹار ہوٹل میں آیا، اور اب وہ دونوں ڈنر کے بعد بہت ہی اچھے موڈ میں ہوٹل سے باہر نکل رہے تھے کہ سامنے کے منظر نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس نے خود کلامی کی۔ پارڈن؟ جانسن اس کی بات نہیں سمجھا تھا۔ اس نے چونک کر اپنے ساتھ کھڑے سفید فام کو دیکھا۔ مجھے لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے وقار۔ اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر کوئی بھی سمجھ سکتا تھا کہ وہ اس وقت اپسٹ ہے۔ یو آر رائٹ، میں تم سے کل صبح ملوں گا۔ رچرڈ جانسن کا قیام اسی ہوٹل میں تھا، اسی لیے اسے لابی سے رخصت کر کے وہ اب اپنی پارکنگ کی طرف جا رہا تھا، جہاں اس کا ڈرائیور انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر ایک بار پھر ابھر آیا۔ ڈنر ٹائم کی وجہ سے ہوٹل میں معمول کا رش تھا۔ وہ اوپر والی منزل پہ بنے ریسٹورینٹ سے نکلا تھا، اسی لیے شاید وہ اسے پہلے نہیں دیکھ پایا تھا، یا پھر وہ ابھی کچھ دیر پہلے وہاں آئی تھی۔ اس کی تیاری ہمیشہ متاثر کن ہوتی تھی، لیکن وہ آج غیر معمولی حسین لگ رہی تھی۔ یوں تو اس پہ ہر رنگ جچتا تھا، لیکن اس سفید لباس میں وہ کسی دیو مالائی داستان کا حصہ لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دمکتے جگنو دیکھ کر اسے اپنا دل ہاتھوں سے پھسلتا معلوم ہوتا تھا۔ وہ جب بھی اسے ملتا اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پاتا تھا، اور شاید آج بھی اس کے سامنے بیٹھا اعظم مسعود اس سے آنکھیں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اس کا نازک ہاتھ تھامے وہ اسے ایک انگوٹھی پہنا رہا تھا، اور وہ جانتا تھا اس میں جڑے پتھر ہیرے ہیں۔ ایسی ہی ایک ہیرو جڑی انگوٹھی وقار نے بھی اس کے لیے خریدی تھی۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے سیاہ ڈنر سوٹ کی دائیں جیب میں گیا، جس میں اس وقت بھی وہ مخمل کی ڈبیا رکھی تھی۔ تمہیں ایک خوشخبری سنانی تھی بیٹا، صابرہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ جلدی بتائیں امی، مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا۔ آئمہ کا نام MBA کی میرٹ لسٹ میں آ گیا۔ سچ امی؟ وہ بے اختیار چیخی تو اس کی روم میٹ نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ اسے معذرت خواہ نظروں سے دیکھتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اگلے ہفتے داخلہ فیس جمع کروانی ہے، تم تو جانتی ہو نا روشنی، تمہاری بہن کو اس یونیورسٹی میں داخلے کی کتنی خواہش تھی۔ اپنا نام میرٹ لسٹ میں دیکھ کر تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے۔ ہاں امی، اس نے محنت بھی تو بہت کی، اور پھر اسے پڑھائی کا شوق بھی ہے۔
आप बस जल्दी से उसका दाखिला यूनिवर्सिटी में करवा दें। वो आयमा की कामयाबी पे बहुत खुश थी। उसके अब्बू को कितनी बड़ी ख्वाहिश थी कि उनकी दोनों बेटियां आला तालीम हासिल करें, लेकिन उनकी तवील बीमारी और फिर वफात के बाद घर का सारा बोझ कम उम्री में उसके कंधों पे आ गया। साबरा खुद महज 8वीं पास थी और ज़िंदगी में बुरा वक्त आने पे वो अपनी बेटियों के लिए कुछ नहीं कर पाई थी। वो खुद को बहुत बेबस महसूस करती थी। उनके खामद एक मामूली तनख्वाहदार मुलाजिम थे। उनकी वफात के वक्त रोशनी एफ़ए कर रही थी। वो तालीम में बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन आगे पढ़ने की ख्वाहिश रखती थी। घर के हालात की वजह से वो बीए में दाखिला नहीं ले सकी, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन और बेवा माँ की जिम्मेदारी संभालनी थी। उसके वालिद के एक पुराने दोस्त की वजह से उसे एक प्राइवेट कंपनी में टेलीफोन ऑपरेटर की मुलाजमत मिल गई। अगर अनवार अंकल का हवाला ना होता तो उसे ये नौकरी कभी न मिल पाती, क्योंकि इस मामूली सी जॉब के लिए भी उससे ज़्यादा तालीमी काबिलियत रखने वाले उम्मीदवारों की लंबी लाइन थी। 2 साल बाद उसकी तनख्वाह 8 से 10 हज़ार हो गई, जो उनकी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाई थी। मगर वो मुतमिन थी, क्योंकि उसके घर वाले इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रहे थे और उन्हें अपने नाम नहाद रिश्तेदारों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। रूखी सूखी खाकर और मोटा जूठा पहन कर भी वो अपने रब का शुक्र अदा करती थी। वो जो कीड़े को पत्थर में रिस्क देता है, इस परवरदिगार ने इस दुनिया में उनके लिए रिस्क हलाल उतारा था। वो अब अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करती कम था। आयमा इंटर कर चुकी थी जब रोशनी को किसी ने दुबई में कॉन्ट्रैक्ट पे होने वाली भर्तियों का बताया। इस कंपनी के एक बहुत बड़े ग्रुप के लिए दुबई में वाक़ सुपर स्टोर्स के लिए सेल्स गर्ल्स और सेल्स बॉयज़ चाहिए थे। इसी तर्ज के स्टोर इस कंपनी ने पाकिस्तान में भी बनाए थे। रोशनी को इस मुलाजमत में दिलचस्पी महसूस हुई। पिछले 2 साल में उसकी शख्सियत में बहुत एतमाद आ चुका था। महीने के 10,000 रुपये को इतनी बड़ी रकम नहीं थी जिस पे 3 लोग अपनी तमाम उम्र की प्लानिंग कर लेते, और फिर वही नहीं चाहती थी कि आयमा उसकी तरह अपनी पढ़ाई मुकम्मल न कर पाए। उसने इस मुलाजमत से मुतल्लिक तमाम ज़रूरी मालूमात हासिल कर ली थी। माहाना तनख्वाह के साथ रिहाइश और ट्रांसपोर्ट भी शामिल थी, और ये एक पुरकशिश पैकेज था। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि उसे ये मुलाजमत मिल गई थी। 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे 2,000 दिरहम माहाना तनख्वाह उसकी ज़िंदगी के कितने मसाइल हल कर सकती थी। वीज़ा, मेडिकल और ट्रेनिंग के साथ अगर वो चाहती तो ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जा सकता था। साबरा ने उसे मना किया कि वो उसे परदेश नहीं भेजना चाहती, लेकिन उसने उन्हें समझाया कि दुबई कुछ मामलात में लाहौर से ज़्यादा महफूज शहर है। तुम वहाँ अकेली कैसे रहोगी? मैं अकेली थोड़ी हूँ अम्मी, वो है मेरे साथ और बहुत सी लड़कियाँ होंगी। लेकिन रोशनी, आपको मुझ पर एतबार करना होगा अम्मी। और बाद न खास्ता साबरा ने उसे दुबई जाने की इजाज़त दी थी। वो दुबई आ गई। 2 साल से वो उनके लिए मुशक्क़त कर रही थी। आयमा कैनेट कॉलेज से बीए कर चुकी थी और अब एमबीए करने लगी थी। बिलाशुबा वो एक ब्राइट स्टूडेंट थी। उसके हाथ से लगा नन्हा सा पौधा एक मजबूत दरख्त बनने वाला था। कुछ अरसे में वो फल देने लगेगा। बस 2 साल और फिर आयमा का भी एमबीए हो जाएगा तो वो पाकिस्तान चली जाएगी। आयमा को तो पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती थी, और इन 2 सालों में उसकी अम्मी ने भी खूब बचत कर ली होगी। वो तो 10,000 में भी घर बहुत अच्छे से चलाया करती थी। इस वक्त वो 3 लोग थे और अब तो वो हर माह उन्हें 40,000 बेचती थी। साबरा से बातें करते और वो आने वाले अच्छे वक्त के ख्वाब देखने लगी थी। रोशनी, आयमा के दाखिले के लिए 50,000 रुपये भेज दो बेटा। साबरा की आवाज़ सुनकर वो अपने ख्वाब से बाहर आई। ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? उसे लगा उसने कुछ गलत सुना है। क्या हो गया है रोशनी? ये भी बताया तो है तुम्हें, आयमा की दाखिला फ़ीस अगले हफ्ते जमा करवानी है। फिर अगली फ़ीस वो कह रही थी 6 माह बाद जाएगी। साबरा ने तफसीलन बताया। अम्मी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं तो अपनी तनख्वाह का भरा हिस्सा आपको भेज देती हूँ। मेरे पास जितने पैसे होते हैं उनमें मेरा पूरा महीना किस मुसीबत से गुजरता है वो मैं जानती हूँ। तुम्हारा वहाँ खर्चा ही कितना होता है रोशनी? रहाइश, ट्रांसपोर्ट सब तो मुफ्त में मिलता है तुम्हें। साबरा ने मुँह बनाया। दुबई बहुत महंगा शहर है अम्मी, पानी भी पैसों से ख़रीद के पीना पड़ता है, वो धीमी आवाज़ में बोली। लेकिन उसने उन्हें इस रहाइश का नहीं बताया जो 8 बाय 10 फुट का एक कमरा थी, जिसे वो 5 लड़कियों के साथ शेयर करती थी। तुम्हें क्या लगता है रोशनी, हम तुम्हारे भेजे हुए पैसों से ऐश कर रहे हैं? इस महंगाई के दौर में 40,000 की औकात ही क्या है? घर का किराया, आयमा के और मेरे अखराजात के बाद अगर कोई मेहमान आ जाए तो 1,500 तो ऐसे ही निकल जाते हैं। वो 10,000 महाना मिलने पर दिन में 10 बार शुक्र अदा करने वाली अपनी माँ के मुँह से ये अल्फाज सुनकर हैरान रह गई। कौन मेहमान अम्मी? उसे मेहमानों के नाम पे भी शौक लगा था। क्या हम लावारिस हैं? तुम्हारे अब्बा के और मेरे कितने रिश्तेदार हैं? बाहर जाकर अपनों को भूल गई हो? अम्मी, आमिन, आप उन रिश्तेदारों की बात कर रही हैं जो अब्बा की मौत के बाद इसलिए हमारे घर नहीं आते थे कि कहीं हम उनसे कोई मदद ना मांग लें। तुम पैसे भेज रही हो या नहीं? उस फ़ोन का भी बिल आता है जो तुम्हारे भेजे 40,000 में से ही अदा करना होता है। साबरा ने तन से कहा। अम्मी, मेरे पास इस वक्त फ़कत इतने पैसे हैं कि मैं महीने के बाकी 10 दिन 2 टाइम खाना खा सकूं। मैंने आज तक अपनी ज़रूरत के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, और यहाँ सब मेरी तरह मेहनत मजदूरी करके थोड़ी सी तनख्वाह में गुजारा करते हैं। ऐसे में किसी से उधार मांग कर ना मैं खुद शर्मिंदा हो सकती हूँ,
نہ انہیں شرمندہ کر سکتی ہوں۔ پختہ اور دھیمے لہجے میں اس نے بات ختم کی اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے اس نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور کمرے میں آ گئی۔ اندر اس وقت 5 غیر ملکی لڑکیاں تھیں جن کے اپنے مسائل تھے، وہ ان کے سامنے کیا آنسو بہاتی۔ موبائل فون ہاتھوں میں تھامے وہ پچھلے 2 گھنٹے سے گمسم بیٹھی تھی۔ ذہن 2 سال پرانی گلیوں میں بھٹک رہا تھا جب وہ پہلی بار دبئی آئی تھی۔ بظاہر بہت اعتماد اور نڈر دکھائی دینے والی روشنی نے جب پردیس میں پہلا قدم رکھا تو اس کا دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ صابرہ کو دیے جانے والے سارے دلاسے وہ اس وقت بھول گئی تھی۔ وسوسے اور خوف کا سام پھن اٹھائے اسے ڈرا رہا تھا، لیکن اس کا اللہ پہ یقین اس سب پہ حاوی ہو گیا۔ اس نے اتنا بڑا قدم اپنی ماں اور بہن کی بہتر زندگی کے لیے اٹھایا تھا۔ ایئرپورٹ سے کمپنی کی بس اسے اور چند دوسرے ملازمین کو لے کر ایک گنجان علاقے میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ زیادہ تعداد مردوں کی تھی اور ان کے حلیے اور گفتگو سے اندازہ یہی لگایا تھا کہ وہ سب مزدور طبقہ تھا۔ سڑک کے دونوں طرف اونچی عالی شان اسکائی اسکریپرز عمارتیں سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ یہ ڈیرہ کا علاقہ تھا۔ بس اب اندرونی سڑک سے ہوتی ہوئی ایک بلڈنگ کے سامنے رک گئی۔ دوسری عمارات کے برعکس یہ ایک پرانی 3 منزلہ عمارت تھی۔ اس بلڈنگ کی تیسری منزل پہ واقع ایک چھوٹے سے فلیٹ میں اس کا قیام تھا، جس میں ایک بیڈ روم اور ایک ہال تھا۔ کچن اور لانڈری کا انتظام بھی تھا۔ کمرے میں جا بجا کھونٹیوں پہ زنانہ کپڑے لٹکے تھے اور بنک بیڈ رکھنے کے بعد یہاں چلنے پھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اس ایک کمرے میں مزید 5 لڑکیاں رہتی تھیں اور باہر ہال میں بھی 6 لڑکیوں کا قیام تھا۔ اسے بعد میں پتہ چلا کہ اس قسم کی رہائش کو یہاں بیڈ سپیس کہتے ہیں۔ اس کے کمرے میں ایک انڈین، 2 فلپائنی اور 2 چینی نژاد لڑکیاں رہتی تھیں۔ اس بلڈنگ اور اس سے ملحقہ بلڈنگوں میں ایسے بہت سے ورکر آباد تھے۔ دبئی بہت بڑی تعداد میں ملٹی کلچر لوگوں کی اماج گاہ ہے۔ یہاں اسے ہر موڑ پہ مختلف قومیتوں اور رنگ و نسل کے لوگوں کا ہجوم نظر آتا تھا۔ اس کے برعکس وہ سب لڑکیاں بہت بولڈ اور پورے اعتماد تھیں۔ وہ سب یہاں اس سے پہلے سے رہ رہی تھیں اور ان کے پاس اپنے ملکوں سے زیادہ دبئی کی معلومات تھی۔ شروع میں اسے ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں کچھ پریشانی ہوئی اور ان کے رویوں سے وہ الجھن محسوس کرتی، لیکن آہستہ آہستہ اس نے خود کو وہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ اس نے ان کے طور طریقوں اور بول چال پہ بھی کبھی اختلاف اور ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، اور یہی ایک واحد طریقہ تھا جو کسی بھی ملٹی کلچر سوسائٹی میں سیٹل ہونے کی پہلی اور آخری کنجی ہے۔ وہ کام میں بے تحاشا مصروف ہو گئی تھی۔ ہفتے میں ایک چھٹی ملتی اور وہ دن اس کا لانڈری اور اگلے ہفتے کی تیاری میں گزر جاتا۔ اسی دن وہ تھوڑا بہت کھانا بھی بنا لیتی تھی۔ اس کی روم میٹس زیادہ تر ٹین فوڈ پہ انحصار کرتی تھی۔ وہ اکثر سی فوڈ ہوتا اور اسے اس کھانے سے گھن آتی تھی۔ انڈین لڑکیاں کیرلا کی تھیں اور انہوں نے میس لگوایا تھا۔ یہاں آ کر اس نے سب سے پہلے اپنے لیے ایک موبائل فون خریدا۔ پاکستان میں موبائل فون کا استعمال اسٹیٹس ہوتا تھا، لیکن دبئی میں اسے پتہ چلا کہ یہ اس کی ضرورت ہے۔ یہاں معمولی سے معمولی مزدور کے پاس بھی اپنا موبائل فون تھا جو اسے اس کے وطن اور اپنوں سے جوڑے رکھنے کا واحد طریقہ تھا۔ یہ عیاشی نہیں ضرورت تھی، اور اس کی یہ ضرورت صرف 200 درہم میں پوری ہو گئی تھی۔ اگلے چند ماہ اس نے گھر آدھی تنخواہ بھجوائی کیونکہ آدھے پیسوں سے اس کو وہ رقم واپس کرنی تھی جو کانٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی سہیلی کے والد سے قرض لی تھی۔ یہاں اسے سپر مارکیٹ کے عملے کی طرح سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ پہننی تھی۔ چند لڑکیاں اسکرٹ بھی پہنتی تھیں، لیکن وہ تو خود کو پینٹ میں بھی بے آرام محسوس کرتی کیونکہ اس سے پہلے وہ کبھی چادر کے بغیر گھر سے نہیں نکلی تھی۔ اسکارف اوڑھ کر وہ چادر کی کمی کو پورا کر لیتی تھی۔ پچھلے 2 سالوں میں روپے کی گھٹتی قدر نے پاکستان بھیجنے والے روپے میں اضافہ کر دیا، لیکن دبئی جیسے مہنگے شہر میں روزمرہ اخراجات کے لیے بھی اسے تھوڑی بہت رقم کی ضرورت تھی۔ اس کی ڈیوٹی بہت سخت اور شفٹوں میں ہوا کرتی تھی۔ یہاں کا موسم شدید تھا اور سال بھر گرمی ہی رہتی۔ اس شہر کی ہائی لائف دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ دکانوں پہ سجی مہنگی برانڈڈ اشیاء اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ پاکستان نہیں تھا جہاں ایلیٹ کلاس غربا کی نظروں سے مخفی ہوتی ہے، ایک بڑے طبقے کو اس کلاس تک رسائی ہوتی ہے، اور نامعلومات لوئر کلاس ان شاپنگ ایریاز کا رخ بھی نہیں کرتی جو ان کے بجٹ سے باہر ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ایسا نہیں تھا۔ یہاں سب کچھ سب کے سامنے ہوتا ہے۔ ہائی لائف دبئی کی اصطلاح جو صرف اس نے اخباروں میں دیکھی تھی، اس کا اندازہ اسے دبئی آ کر ہوا۔ ہر روز اس شاپنگ مال سے گزر کر اپنی سپر مارکیٹ میں جاتے ہوئے اس کی نظروں کے سامنے سے وہ مہنگی برانڈ کی دکانیں گزرتی تھیں جن میں ایک بار کی شاپنگ اس کی پورے ماہ کی تنخواہ سے بھی ممکن نہیں تھی۔ اسٹیٹس اور طرز زندگی کا جو روپ اس نے چند ماہ دبئی میں دیکھا وہ اپنی پوری زندگی پاکستان گزارنے کے باوجود نہیں جان پائی تھی۔ یہاں 2 طبقے آمنے سامنے ہیں، ایک جس کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے اور دوسرا لیبر کلاس جو انٹرنیشنل ویجز سے قدرے کم قیمت پر اپنی سروسز مہیا کر رہا ہے۔ لیکن اس طبقے کی فرسٹریشن کا اندازہ صرف وہی لگا سکتی تھی جو خود اس ہجوم کا حصہ تھی۔ اس کے ساتھ رہنے والی لڑکیاں بھی ہر ماہ کے آغاز میں اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ اپنی فیملیز کو بھیج دیتی۔ لینڈا اپنے 2 بچوں اپنی ماں کے پاس فلپائن چھوڑ کر آئی ہوئی تھی۔ جینی کا شوہر فلپائن سے دبئی آنے کے لیے پر تول رہا تھا
ज्योति को अपने जहेज के लिए 10 लाख रुपए चाहिए थे, वरना उसकी मंगनी ख़त्म हो जाती और बाकी की लड़कियां भी ऐसे ही किसी न किसी मजबूरी में वहाँ रहती थी। उनकी बातें सुनकर उसे अंदाज़ा होता था अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए वो किस हद तक भी जा सकती थी। उसकी तरह उनके पास भी बहुत मामूली रकम ही बचती थी, लेकिन फिर भी उनका रहन सहन रोशनी से बहुत बेहतर था। जितनी पैसे में रोशनी महीने की ग्रोसरी करके अपने खाने का इंतज़ाम करती, इतने पैसे तो लैंडा एक दिन में ब्यूटी पार्लर में उड़ा आती थी। मेट्रो के 5 दिरहम बचाने के लिए कभी कभी वो पैदल चलती थी। ऐसे में उसके सस्ते जूतों से उसके पाँव में छाले बन जाते। 2 माह पहले उसने साबरा और आयमा को बहुत से तोहफे भेजे जो उसने यहाँ की सस्ती दुकानों से ख़रीदे थे। उसकी एक मिलने वाली पाकिस्तान जा रही थी, इसलिए उसने 1 माह ओवर टाइम करके उसके हाथ अपनी माँ और बहन के लिए वो सारा सामान भिजवाया था और 1 माह तक वो बगैर किसी छुट्टी के काम करती रही थी। उसने पिछले 2 साल में भी किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खाना नहीं खाया, जबकि उसके साथ काम करने वाली अक्सर लड़कियां वीकेंड पे खूब इंजॉय करती थीं और इनमें सिर्फ फिलिपानी और चाइनीज़ नहीं, पाकिस्तानी और इंडियन भी शामिल थी। शुरू शुरू में उसे हैरत हुई, लेकिन जल्द ही वो इस वजह को जान गई थी। कई बार उसने लैंडा और जेनी को मुख्तलिफ लड़कों के साथ देखा। वीकेंड पे अगर उनकी ड्यूटी ना होती तो वो पूरी रात कमरे में वापस नहीं आती थी। उस दिन वो सुबह 6 बजे अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वापस आ रही थी जब उसने लैंडा को लड़खड़ाते कदमों के साथ बिल्डिंग की सीढ़ियाँ चढ़ते देखा। उस वक्त उसका लिबास देखकर उसका सर शर्म से झुक गया। वो उनकी हरकतों को नापसंद करती थी, लेकिन वो उन पर तनकीद नहीं कर सकती थी। अपने तौर पर वो मोहतात थी, लेकिन किसी दूसरे को बदलना उसका मसला नहीं था। यहाँ आकर उसने दुनिया का जो रूप देखा और जिन मसाइल का वो शिकार रही, इन सब का जिक्र उसने साबरा से नहीं किया। वो उन्हें तकलीफ़ देना नहीं चाहती थी। उसने तो उन्हें यह भी नहीं बताया था कि उसे खटमलों के काटने से एक बार कितनी बुरी एलर्जी हो गई थी और बुखार में भी वो कभी छुट्टी नहीं कर सकी थी। उसके लिए ये इतने बड़े मसाइल नहीं थे। उसने बहुत कम उम्र से मेहनत शुरू की थी और जल्द ही उस टफ रूटीन की आदी हो गई थी। फ़ोन की बेल बहुत देर से बज रही थी। उसने स्क्रीन पर नज़र दौड़ाई तो पाकिस्तान का नंबर देखकर जल्दी से फ़ोन रिसीव किया। शायद अम्मी को अपनी ज़्यादती का एहसास हो गया था, इसीलिए वो उसे दोबारा कॉल कर रही थी। हथेली से आंखों की नमी साफ़ करते उसने सोचा और कॉल रिसीव की। हेलो आपी। दूसरी तरफ आयमा थी। हाँ आयमा, कैसी हो? उसने अपनी छोटी बहन की आवाज़ सुनकर मोहब्बत से कहा। अगर तुमने अगले हफ्ते तक मेरे एडमिशन के पैसे नहीं भिजवाए तो मैं कसम खाकर कहती हूँ मैं खुदकुशी कर लूँगी, वो चीखते हुए कह रही थी। तुम होश में तो हो आयमा? वो आयमा की बात सुनकर बेतहाशा परेशान हो गई थी। मैं इस वक्त पूरे होशो हवास में हूँ। जानती हूँ कितने एहसान किए हैं तुमने मुझ पर, लेकिन इस वक्त तुम मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन नहीं खींच सकती आपी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, मैंने इस यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए दिन रात एक किया है और अब जब मेरा ख्वाब पूरा होने का वक्त आया है तो तुम खुद को मक्खन में से बाल की तरह नहीं निकाल सकती हो। अगर तुमने यही सब करना था तो फिर चंद साल पहले ही कर लेती। उस वक्त लोगों को अपना बड़ापन दिखाकर अजमत का मेडल गले में सजा लिया और आज जब मेरे मुस्तकबिल की सिमत का तयन होने लगा है तो तुमने हाथ उठा लिए हैं। आयमा की बातें उसके दिल में निश्तर की तरह लगी थी। लेकिन आयमा, मेरे पास इस वक्त इतने पैसे नहीं हैं। मैं तो आयमा ने उसे मज़ीद कुछ कहने का मौका नहीं दिया। मैं ये सब नहीं जानती, मुझे इतना पता है अगर मेरी फ़ीस अदा ना हुई तो मेरा साल ज़ाया हो जाएगा और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। इस ज़िल्लत और रुसवाई से अच्छा है मैं अपनी जान दे दूँ। उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर आयमा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसने शिकस्त खुर्दी से फ़ोन अपने साइड पर रखा। आंसुओं से उसका चेहरा भीग चुका था। कमरे में अब कोई नहीं था, इसलिए वो दिल भर कर रो सकती थी। लेकिन अचानक बाथरूम का दरवाज़ा खुला और जैनी बाहर आई। उसने सुर्ख रंग का इंतहाई मुख्तसर स्लीवलेस लिबास पहन रखा था। उसे याद आया आज वीकेंड नाइट है, शायद वो क्लब जाने के लिए तैयार हो रही थी। देखना कैसे इंतज़ाम होता है अब पैसों का। फ़ोन रख कर आयमा ने फातिहाना नज़रों से साबरा की तरफ देखा। आपी के पास बहुत पैसे होते हैं अम्मी, आपको क्या लगता है वो इतनी अच्छी हैं कि सारी तनख्वाह हमें भिजवा कर इतने सालों से खाली हाथ बैठी हैं? आपको याद नहीं जब 1 माह पहले उनकी कोई मिलने वाली पाकिस्तान छुट्टियों पे आई थी तो कितना सामान भिजवाया था उन्होंने? उसके पैसे कहाँ से आए थे? मैं भी तो यही हैरान हूँ। आखिर 2 साल में उसने किया इतनी थोड़ी बचत भी ना की होगी कि बहन के दाखिले के लिए 40-50 हज़ार ही भिजवा दे। साबरा ने मुँह बनाया। आपको तो बात करना ही नहीं आती। देखना अब दबाव डाला है तो कैसे पैसे भिजवाएंगी? आयमा ने फ्रिज से डब्बा निकाल कर जूस गिलास में उंडेला और अपने कमरे में चली गई। चंद साल पहले उनके घर के हालात मुख्तलिफ थे। महदूद आमदनी की वजह से वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अब हालात बदल चुके थे और उनके मिजाज भी। 2 साल से ज़्यादा हो गया था रोशनी को दुबई गए हुए। वो उन्हें बाकायदगी से पैसे भेज रही थी जो इन दोनों की ज़रूरत से बहुत ज़्यादा थे और इस दौरान उसने कभी उनसे कोई हिसाब नहीं मांगा। तो ये क्या ये ज़रूरी था वो अपनी ज़रूरतों को आज भी इतना ही महदूद रखते? कल रात से वो अपने कमरे में बंद था। पिछले कई घंटों में उसने बेतहाशा सिगरेट फूंक डाले थे। सिगरेट के जले टुकड़े जा बजा कारपेट पे बिखरे हुए थे। नींद से उसके बपोटे भारी हो रहे थे। उसका जहन माउफ हो चुका था। वो सोना चाहता था, लेकिन इस वक्त सिर्फ खुद को अजियत दे रहा था। यादें किसी फिल्म की रेल की तरह जहन के पर्दे पे चलती जा रही थी।
وہ شاید اس دن PC کی لابی سے نکل رہا تھا جب اس نے پہلی بار اس کو دیکھا تھا۔ ٹرسٹ می روبی، میں نے اس سے پہلے اتنا شاندار لائیو کانسرٹ نہیں دیکھا۔ زندگی سے بھرپور شوق اور چنچل آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ میں تو خود عاطف کو فل فارم میں دیکھ کر حیران رہ گئی ہوں، دوسری لڑکی نے تبصرہ کیا۔ وہ دونوں شاید کوئی کانسرٹ دیکھ کر باہر نکلے تھے۔ اس نے گھڑی کو دیکھا جہاں اس وقت 12 بج رہے تھے۔ عاطف کو اتنے قریب سے دیکھنا میرا کتنا بڑا خواب تھا، مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا۔ وہی شوخ آواز ایک بار پھر ابھری۔ اس بار اس نے ذرا غور سے ان دونوں کو دیکھا۔ سفید لباس میں وہ کسی راج ہنس کی طرح حسین لگ رہی تھی۔ اس کے خوبصورت کھلے بال اس کی شخصیت کو اور بھی دلکش بنا رہے تھے۔ اس کی مغرور ناک اور کاجل سے لبریز آنکھیں دیکھ کر وہ نظر ہٹانا بھول گیا تھا۔ ڈرائیور کہاں رہ گیا ہے؟ اس کے انداز میں بیزاری تھی۔ میں کال کر کے پتہ کرتی ہوں۔ دوسری لڑکی جس کا نام روبی تھا وہ اب اپنے موبائل سے کال ملا رہی تھی۔ ہیلو بشیر، تم آئے نہیں اب تک، ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، کتنا وقت لگے گا؟ اوہ ہو، اس وقت تو کوئی ٹیکسی بھی نہیں ملے گی۔ چلو ہم یہی انتظار کرتے ہیں، تم جلدی آؤ۔ کیا ہوا؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ وہ کہہ رہا ہے گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے اور اس کے پاس جیک نہیں ہے، گھر جا رہا تھا، کسی سے لفٹ لے کر آنے میں شاید گھنٹہ لگ جائے۔ اس کے چہرے پہ پریشانی تھی۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ ان کی گفتگو سن کر وہ آگے بڑھا۔ مغرور ناک والی نے ناک سکور کر اسے دیکھا۔ معاف کیجیے گا، میں آپ کی گفتگو سن چکا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، اس نے خوش اخلاقی سے آفر کی۔ یقین جانیے میں ایک شریف آدمی ہوں اور ابھی ایک بزنس ڈنر سے فارغ ہوا ہوں، یہ میرا کارڈ ہے۔ اس نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ وقار حسن، روبی نے بآواز بلند پڑھا۔ وہ ظالم حسینہ ابھی تک خاموش تھی۔ اگر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی ہیں تو میں چلتا ہوں، اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ ہمیں شادمان جانا ہے۔ روبی کی آواز پہ اس نے رک کر انہیں دیکھا۔ دوسری لڑکی اسے گھور رہی تھی۔ روبی نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ ہو لی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس سنگ مرمر کے صنم کو دیکھا جو ناراض سے روبی کے ساتھ چل پڑی تھی۔ اپنی سیاہ مرسیڈیز میں اس نے انہیں بحفاظت شادمان کی ایک کوٹھی کے باہر اتارا۔ روبی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ دونوں اس گھر میں داخل ہو گئی تھیں۔ اگلی بار ان سے اس کی ملاقات جیل روڈ کے میک ڈونلڈ میں ہوئی جہاں وہ دونوں خوشخبریوں میں مصروف تھی۔ ارد گرد سے بے نیاز وہ اس وقت برگر انجوائے کر رہی تھی۔ ہیلو گرلز، خوش اسلوبی سے کہتا وہ ان کی ٹیبل کے پاس کھڑا تھا۔ ان دونوں نے ہی اسے چونک کے دیکھا اور پھر روبی کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، البتہ اس کے چہرے پہ آج بھی نو لفٹ کا بورڈ لگا تھا۔ آپ ہمیشہ اتنے غصے میں ہوتی ہیں یا مجھے دیکھ کر ایسی کیفیت بیدار ہو جاتی ہے؟ روبی کے آفر پہ وہ اب ان کے ساتھ ہی ٹیبل پہ بیٹھ چکا تھا۔ میں اجنبیوں سے بے تکلف نہیں ہوتی، اس نے ٹکا سا جواب دیا۔ اجنبی پہلی ملاقات میں ہوتے ہیں اور ہم پہلے بھی مل چکے ہیں، لگتا ہے آپ کی یادداشت بہت بری ہے مس، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسٹر وقار حسن، آپ کی مدد کے لیے روبی اس دن آپ کا شکریہ ادا کر چکی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن مدد تو میں نے آپ کی بھی کی تھی۔ وہ دوسری طرف ڈٹائی کے تمام ریکارڈ توڑ چکا تھا۔ تو آپ چاہتے ہیں اس احسان کے لیے میں تعمر آپ کے مشکور رہوں اور جہاں بھی آپ کو دیکھوں کورنش بجا لاؤں؟ وہ بگڑے ہوئے تیوروں سے بولی، اتنی حسین آواز اور اتنا روڈ انداز، وہ بھی اپنی قسم کا ایک ہی تھا۔ اس بار سامنے شکست کے آثار نمایاں تھے۔ سب لڑکیوں کی طرح تعریف بہرحال اس کی بھی کمزوری تھی۔ دن گزر رہے تھے اور ان دونوں کے درمیان فاصلے کم ہو رہے تھے۔ آنے والے دنوں میں ان کی ملاقاتوں میں اضافہ ہوا۔ وائٹ کلر تم پہ بہت اچھا لگتا ہے، کاٹن نیٹ کے سفید لباس میں اسے دیکھ کے اس نے سراہا، جیسے چاندنی رات میں کوئی جھیل حسین لگتی ہے۔ تم سے ملنا میری زندگی کا سب سے حسین اتفاق ہے۔ اس چند ماہ میں تمہیں بہت چاہنے لگا ہوں۔ ارد گرد سے بے نیاز وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں زندگی میں کسی لڑکی سے ایسی جذباتی باتیں کروں گا، لیکن میں خود پہ اپنا اختیار کھونے لگا ہوں۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے، تمہیں جانا ہے، میرے دل میں میرے بس میں نہیں رہا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالا کہہ رہا تھا، سوچا تو میں نے بھی نہیں تھا وقار کہ کوئی اتنی آسانی سے مجھے فتح کر لے گا۔ وہ ایک ادا سے مسکرائی، وہ بلا کی پر اعتماد تھی، ذہین اور دلکش، بولتی تو لگتا پھول جھڑ رہے ہوں اور چلتی تو زمانہ رک جاتا تھا، یا شاید وقار کے لیے وقت ٹھہر چکا تھا۔ وہ اس کے عشق میں پاگل ہو چکا تھا۔ وہ تھی بھی اتنی حسین اور متاثر کر دینے والی کہ اگر وہ شاعر ہوتا تو اس پہ دیوان لکھتا، مصور ہوتا تو مونالیزا تخلیق کرتا، لیکن وہ تو آرکیٹیکٹ تھا اور اس جیتے جاگتے تاج محل کے لیے وہ پتھر کا شاہکار کیا بناتا۔ وہ دل و جان سے اس پر فدا تھا۔ اس دن لانگ ڈرائیو پر اس کا چاندی رنگ کا ہاتھ تھامے وہ بہت خوش تھا۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ ہمیں ملے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، ابھی تو ٹھیک سے ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں اور تم شادی تک پہنچ گئے؟ اس نے بے نیازی سے ناک سکیری۔ اس کی عادت پہ وہ اور بھی وارفتہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خیر اب اتنا تھوڑا وقت بھی نہیں ہوا ہمیں ملتے، مجھے تو لگتا ہے میں تمہیں برسوں سے جانتا ہوں۔ اب تو دل کرتا ہے جلدی سے تم میری زندگی میں آ جاؤ، مجھ سے اب اور صبر نہیں ہوتا۔
لیکن اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی میری اسٹڈیز مکمل نہیں ہوئی اور میں شادی کر کے اپنی تعلیم پہ کمپرومائز نہیں کروں گی۔ تمہیں ایسا کہہ بھی کون رہا ہے؟ تم شادی کے بعد بھی اپنی تعلیم مکمل کر سکتی ہو۔ لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ممی میری تعلیم کو لے کر بہت پوزیسو ہے۔ شادی جیسی ذمہ داری اور پڑھائی میں اکٹھے مینیج نہیں کر سکتی۔ ابھی تو میں لائف کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ دھیرے سے اپنا ہاتھ نکال کر وہ صاف گوئی سے بولی، شادی نہ صحیح، منگنی تو کر سکتے ہیں۔ وقار نے تجویز دی، اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی سالگرہ پہ وقار نے اسے سیاہ شفون کا قیمتی لباس تحفے میں دیا۔ اس کی خواہش کے مطابق وہ ڈریس اس نے اس کے ساتھ ڈنر پہ آتے ہوئے پہنا۔ سیاہ مخمل کی ڈبیا میں بند ایک قیمتی بریسلیٹ اس کو دیتے ہوئے اس نے محبت سے اپنے سامنے بیٹھے اس ساقی کو دیکھا جن بن پلائے مدہوش کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وقار کے دل میں اس کی محبت اور بھی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ محبت چیز ہی ایسی ہے، یہ آکٹوپس کی طرح وجود کو جکڑ کر بے بس کر دیتی ہے، پھر اس کے شکنجے سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ تم نے اپنی والدہ کو میرے بارے میں بتایا؟ وہ فون پر اسے پوچھ رہا تھا۔ ممی ابھی لندن گئی ہوئی ہیں، ان کی کزن کی بیٹی کی شادی ہے، 1 مہینہ تو لگ ہی جائے گا۔ آئیں گی تو انہیں تمہارے بارے میں بتاؤں گی۔ اور یہ 1 مہینہ ممی کی بیٹی کیا کرے گی؟ بیٹی کو پڑھنا ہے، ایگزام سر پر ہیں، تھوڑا وقت اس خاکسار کے لیے بھی نکال لو۔ کتنے دن سے تمہیں دیکھا نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں آج لنچ پہ ملتے ہیں۔ بہت مصروف ہوں جناب، آپ کو ملاقات کے لیے اپائنٹمنٹ لینا ہوگی۔ محبت کرنے والوں کے صبر کو ایسے نہیں آزماتے۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، اب تم ٹھنڈی آہیں بھرو گے تو ملنے آنا ہی پڑے گا۔ وہ اس سے ملنے چلی آئے۔ وہ بہت زیادہ نہیں ملتے تھے لیکن ہمیشہ رابطے میں رہتے تھے۔ وہ آج کل بہت خوش رہنے لگا تھا اور اس کی خوشی اس وقت دوبالا ہو گئی جب اس نے وقار کو یہ بتایا کہ وہ اپنی والدہ سے اس کے بارے میں بات کر چکی ہے اور جلد ہی وہ دونوں کی منگنی کر لیں گے۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے اور انہیں اس کی خوشی ہر حال میں عزیز ہے۔ اگلے چند دن میں اس کی مصروفیت بہت بڑھ گئی، اسے دبئی جانا تھا۔ اس کا موبائل کافی دیر سے بج رہا تھا۔ عائشہ کی کال دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ وہ اس کی بڑی بہن تھی جو شادی کے بعد کینیڈا میں مقیم تھی۔ اس کی شادی ان کے ماموں کے بیٹے خرم سے ہوئی تھی۔ وقار اور عائشہ کے والدین کا چند سال پہلے ایک ٹریفک حادثے میں انتقال ہو چکا تھا۔ وہ وقار سے 8 سال بڑی تھی اور ہمیشہ سے اس سے بہت اٹیچ تھا۔ ان کے والد حسن منیر کا تعلق سینٹرل پنجاب کے ایک جاگیردار گھرانے سے تھا۔ بہت تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ان کا خاندان بڑا قدامت پسند اور روایتی تھا۔ خاندانی اقدار و حسب نسب کی آج بھی وہ مذہب کی طرح پیروی کرتے تھے۔ ان کی ذاتی کنسٹرکشن کمپنی تھی۔ وقار کی ابتدائی تعلیم کانوینٹ کی تھی۔ وہ 20 سال کا تھا جب ان کے والدین کی وفات ہو گئی۔ ان دنوں وقار امریکہ میں تھا۔ حسن منیر کی وفات کے بعد وقار عائشہ کے اور بھی قریب آ گیا۔ اس نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کیلیفورنیا سے اسٹرکچرل انجینئرنگ میں پوسٹ گریجویشن کیا تھا۔ اپنی تعلیم کا ختم کر کے چند سال پہلے وقار پاکستان آ گیا اور اپنے والد کی کنسٹرکشن کمپنی کو دوبارہ اسٹیبلش کر رہا تھا۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور عائشہ کی تو جیسے اس میں جان تھی۔ سال میں ایک بار وہ وقار سے ملنے ضرور آتی اور وقار خود تو اس کے پاس کسی بھی بزنس ٹور میں کینیڈا کا اضافہ کر کے چکر لگا ہی آتا تھا۔ میں نے کنزا سے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ رسمی اسلام دعا کے بعد وہ اسے زبیر ماموں کی بڑی بیٹی سے اس کا رشتہ طے ہونے کے متعلق بتا رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ ہی؟ آپ نے مجھ سے پوچھا تک نہیں؟ وہ ان کی بات سن کے حیران رہ گیا۔ لیکن تم نے خود ہی تو کہا تھا تم میری پسند سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ اس نے اسے چند ماہ پہلے کی بات کا حوالہ دیا۔ ویسے بھی زبیر ماموں سے اس رشتے کی بات ممی ڈیڈی کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی اور یہ تو ایک رسمی سی کارروائی ہے۔ پھر بھی آپ کو ایک بار مجھ سے پوچھنا تو چاہیے تھا، یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ ہم تو 2 ماہ بعد تم دونوں کی شادی پلان کر رہے ہیں۔ وہ قدرے خائف تھی۔ وقار نے کبھی اس کی بات کو رد نہیں کیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس سے اس لہجے میں بات کر رہا تھا۔ وہ اس کے رویے سے نالا تھی۔ تو آپ ان کو منع کر دیں، کیونکہ میں کنزا سے شادی نہیں کر سکتا۔ لیکن کیوں؟ آخر برائی کیا ہے کنزا میں؟ آپ ہی آپ کی برائی نہیں، بلکہ وہ تو بہت اچھی اور سمجھدار لڑکی ہے، لیکن میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیا تمہیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں کہ تمہارے اس فیصلے سے میری ذاتی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا؟ میرے سسرال میں میری کتنی آکورڈ پوزیشن ہو جائے گی۔ پھر یہ ہمارے بڑوں کا فیصلہ ہے آپ ہی، وہ ہمارے ماموں کی فیملی ہے اور میری کنزا کے ساتھ شادی سے آپ کی ذاتی زندگی کا کیا تعلق؟ وہ لوگ آپ کو اس طرح استعمال نہیں کر سکتے۔ ماموں کی فیملی تھی لیکن اب وہ میرے سسرال والے ہیں اور تم اگر بڑوں کا طے کیا ہوا یہ رشتہ ختم کرو گے تو اس کے نتائج مجھے بھی تو بھگتنے ہوں گے۔ میری اس سے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ میں ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا جہاں صرف بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی ایک ایسے انسان کے ساتھ گزار دوں جس کی میرے ساتھ ہم آہنگی ہی نہ ہو۔ یہ کوئی 10ویں صدی نہیں ہے۔ تو میری شادی بھی تو ممی ڈیڈی اور ماموں نے ہی طے کی تھی۔ کیا میری خرم کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے؟ کیا ہم ایک اچھی زندگی نہیں گزار رہے؟
तुम ने सोचा है तुम इस तरह इस रिश्ते को ख़त्म करने से खुर्रम और मेरे दरमियान कितना स्ट्रेस आ जाएगा। आप अभी खुद ही मुझे अपनी खुर्रम भाई के साथ अंडरस्टैंडिंग का मुतालिक बता रही थी। अगर आप दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग है तो फिर तो उन्हें आपके साथ इस मौजू पे बात करनी ही नहीं चाहिए। तुम इतने खुद गर्ज कब से हो गए हो वकार? मैं अपनी ज़िंदगी अगर अपने तरीके से गुजारना चाहूँ तो क्या ये खुद गर्जी है? मैं जानता था उसका रवैया आयशा को दुखी कर रहा है। उसने आज तक उसकी किसी बात से इनकार नहीं किया था, लेकिन वो किसी सूरत उसकी बात नहीं मान सकता था। उसकी परेशानी में इजाफा हो गया था। अगर आज मम्मी डैडी ज़िंदा होते तो तुम कभी मुझसे इस लहजे में बात न करते। अपने ससुराल वालों के सामने कितने फ़ख्र से मैंने तुम्हारी और किंजा की शादी के हवाले से बात की है, और अब मैं कितना शर्मिंदा होंगी उन सब के सामने। वो उसे अब इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी। वकार जानता था वो कुछ मामलात में बहुत रवायती औरत है। वो वकार की ज़िंदगी में बहुत अहम थी, और वो जानता था किसी न किसी तरह वो वकार को इस शादी के लिए कायल कर लेगी। लेकिन मैं शादी कर चुका हूँ। वकार के पास झूठ बोलने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इस झूठ की सूरत में कम से कम वो इस मतवक्का शादी से बच गया था। हालांकि उसे अंदाज़ा था कि इस बात को सुनकर आयशा को शदीद दुख पहुंचा होगा, लेकिन ये सब वक्ती होगा, और जब वो अपनी मोहब्बत से उसे मिलवाएगा तो वो भी उसकी पसंद की दाद देगी, और वो उससे कितनी मोहब्बत करती है कि उसे माफ़ कर देगी। वो दिल के हाथों मजबूर था, और दिल के फैसले दिमाग पे हावी होते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने शादी कर ली है और मुझे बताया तक नहीं? मैं आपको बताने वाला था, बस हालात ही कुछ ऐसे हुए कि मुझे शादी करनी पड़ गई। वो झूठ पे झूठ बोल रहा था। जानता था इस बात के बाद किंजा वाला चैप्टर क्लोज हो जाएगा। वो ठीक सोच रहा था। आयशा ने उसी वक्त गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन अब वो अपनी चंद दिन पहले कही बात पे बुरी तरह पछता रहा था। माजी से निकल कर वो हॉल में लौट आया। इसका फ़ोन बहुत देर से बज रहा था। बेदिली से उसने हाथ बढ़ा कर फ़ोन अटेंड किया। ऑफिस से बार बार कॉल आ रही थी। सर, आपकी कल दोपहर की सीट कंफर्म करवा दी है। उसकी सेक्रेटरी उसे इत्तला दे रही थी। कहाँ की सीट? उसने गायब दमाही से कहा, और फिर उसे याद आया उसे कल दुबई जाना था। उसकी सारी हिस्सियात लौट आई। मुझे सारी डिटेल्स ईमेल कर दो। मैं आज और कल ऑफिस नहीं आऊँगा। उसने कॉल काट दी थी। वो नहीं जानता था वो सही मायनों में किस बात से अपसेट है। कल रात उसे मकामी एमएनए के ओबाश बेटे आज़म मसूद के साथ देखकर, या फिर अपनी बहन से बोले इस झूठ की वजह से पिछले 1 माह से इन दोनों की मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि वो दुबई में था, और अगर पाकिस्तान आता भी तो उसकी मसरूफियात अरूज पे होती। लेकिन फ़ोन पे कई बार बात हो चुकी थी, और कल उससे मिलकर वो उसे ज़िंदगी का बेहतरीन तोहफ़ा देना चाहता था। आयशा से उसने जो कुछ कहा वो उसे पहले ही बता चुका था, और अब बेशकीमत हीरे की अंगूठी देकर वो उसे बाकायदा प्रपोज करने का इरादा रखता था, जो उसने कल ही खरीदी थी। अगले चंद दिनों में वो दोनों शादी कर लेंगे, और फिर वो आयशा को भी मना लेगा। वो ऑफिस से रिचर्ड के साथ निकला और डिनर के लिए उसे अवारी ले आया था। यहीं रिचर्ड का क़याम भी था, लेकिन जो कुछ उसने देखा उसने सही मायनों में उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी। वो जो पिछले 1 साल से उस हुस्न की देवी के इश्क में दीवाना हुआ फिर रहा था, अपनी बहन से इतना बड़ा झूठ बोलकर उसने उसका दिल दुखाया था, और इस वक्त वो जेब में मंगनी की अंगूठी डाले उससे अगले चंद दिन में शादी के प्रोग्राम बना रहा था। वो उसकी आंखों के सामने एहसान मसूद के बददिमाग और करप्ट बैठे आज़म मसूद के साथ बैठी थी। असिस्टेंट कमिश्नर आज़म मसूद को वो बहुत अच्छी तरह जानता था। उसकी पोस्टिंग आजकल वकार के आबाई इलाके में थी, और चंद बार उससे मुलाकात भी हो चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी जानता था कि आज़म कितना बड़ा फ्लर्ट है, और इसके चंद आशकों की खबर तो वकार को भी थी। आज़म के साथ बैठे उसकी आंखों में वही चमक और बरफ्तगी थी जो कभी वो अपने लिए देखता था। उसका नाजुक हाथ इस वक्त आज़म के हाथ में था, और वो उसे बहुत मोहब्बत से एक बेशकीमत अंगूठी पहना रहा था। ये लम्स कभी वकार का नसीब था। इससे पहले कोई रात वकार पे इतनी भारी नहीं गुजरी थी। ए अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, मैं तेरी हकीर बंदी हूँ, तेरे दर पे साइल बनी मैं तुझसे तेरी रहमत की भीख मांग रही हूँ। तू जानता है मैंने तुझसे कभी शिकवा नहीं किया। तूने मुझे जिस हाल में रखा मैंने तेरा शुक्र अदा किया है। तूने मुझे अपने बहुत से नेक बंदों से भरकर अता किया। मैंने ज़िंदगी की हर आजमाइश को सब्र और शुक्र से बर्दाश्त किया है। आज तक रिस्क के हराम को हाथ नहीं लगाया। खुद को गुनाहों से दूर रखने की कोशिश की। दुनिया के फरेब से खुद को बचाने की हर मुमकिन सही की है, लेकिन मैं आज खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं इन हालात में किससे मदद मांगूँ। मैं इनमें से नहीं जिनके दौड़ने पे ज़मज़म फूट निकले। मोअज़्ज़ों का दौर गुजर चुका है, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक मोहम सी उम्मीद है, शायद कोई मुआवजा हो जाए। मेरे परवरदिगार मेरी मुश्किल आसान कर दे। सजदे में गिरी वो बहुत देर से रो रो कर अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर रही थी। कमरे में इस वक्त कोई नहीं था। अगर कोई होता तो उसकी गिरियाज़ारी सुनकर उसका सीना फट जाता। उसने कई बार समीना के पुराने नंबर पर रब्ता करने की कोशिश की, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो इस बार भी उसकी कुछ माली मदद कर दे। हालांकि वो जानती थी उसके लिए इस बार रकम की अदायगी आसान नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो ओवर टाइम करके उसको रुपए वापस कर देती। लेकिन उसकी बात ना हो सकी, और फिर अचानक उसे सहरिश का ख्याल आया। उसने जल्द ही उसे
اپنا موبائل فون اٹھایا اور اس کے نمبر پہ کال ملانے لگی۔ تیسری بیل پہ اس کی کال اٹھا لی گئی تھی۔ صبح کے 10 بج چکے تھے۔ اس کا سفری بیگ تیار تھا۔ اپنی گھڑی پہ ایک اچڑتی نگاہ ڈال کر اس نے ملازم کو بلایا۔ بزنس لاؤنج میں وہ کافی بیزار بیٹھا تھا۔ اگر کل کی میٹنگ ضروری نہ ہوتی تو وہ اس سفر کو کینسل کر چکا ہوتا۔ کئی ماہ کے انتھک محنت کے بعد وہ لاسٹ منٹ پہ اس پروجیکٹ کو گنوا نہیں سکتا تھا۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ اپنا بیگ اٹھایا وہ ایرو برج کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ذہنی طور پہ کافی ڈسٹرب تھا۔ اپنی ذاتی زندگی کی الجھن کو وہ کس طرح سلجھائے؟ کیا وہ عائشہ کو بتا دے کہ اس نے اس سے جھوٹ کہا تھا؟ کم سے کم سچ بول کر وہ اپنی بہن کی ناراضگی ختم کر سکتا تھا، جس نے پچھلے پورے ایک ہفتے سے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ لیکن اگر عائشہ آپی نے یہ سب جان کر اسے کنزا سے شادی کرنے کی بات دوبارہ شروع کر دی، پھر وہ کیا کرے گا؟ ان حالات میں وہ شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شاید اسے کچھ وقت خاموشی سے گزارنا چاہیے۔ دبئی سے واپسی پہ وہ خود جا کر عائشہ کو سب کچھ بتا دے گا اور اس سے ریکویسٹ کرے گا کہ وہ اسے شادی کے لیے فی الحال فورس مت کرے۔ وہ تمام راستہ یہی سوچتا رہا۔ ایئرپورٹ سے اس نے ہمیشہ کی طرح گاڑی کی پک کی اور اب اس کا رخ ہوٹل حیات گیلریا کی طرف تھا۔ دبئی اس کے لیے اجنبی شہر نہ تھا، بلکہ شاید یہ اس کے لیے سیکنڈ ہوم کی حیثیت رکھتا تھا۔ ہوٹل تک پہنچتے اسے آدھا گھنٹہ لگا، جو ٹریفک جام کی بدولت تھا، ورنہ وہ محض 10 منٹ کا راستہ تھا۔ صبح اور شام کے اوقات میں دبئی کی سڑکوں پہ بدترین ٹریفک جام ہوتا ہے۔ کچھ دیر پہلے اس نے ہوٹل میں چیک ان کیا اور اب وہ صرف سونا چاہتا تھا۔ اپنی کرنٹ مینٹل کنڈیشن میں وہ کل صبح کی میٹنگ اٹینڈ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میٹنگ اس کے لیے بہت اہم تھی اور کل اس کی زندگی کا سب سے اہم دن تھا۔ پچھلا پورا مہینہ اس کا شدید مصروفیت میں گزرا تھا۔ ایک امریکی کمپنی دبئی میں ایک مال کی تعمیر شروع کر رہی تھی۔ رچرڈ جانسن اس کمپنی کا جنرل مینیجر اور وقار کا یونیورسٹی فیلو تھا۔ دونوں کے درمیان کافی گہری دوستی تھی۔ وقار نے چند سال پہلے اپنے والد کا بزنس ری اسٹیبلش کیا اور اس کے پاس اس وقت پاکستان میں بہت سارے اہم پروجیکٹس تھے۔ کنسٹرکشن مارکیٹ میں وقار کے پاؤ جم چکے تھے، لیکن اسے اپنے کاروبار کو انٹرنیشنل لیول پہ لانے کے لیے ایک بہت بڑے بریک کی ضرورت تھی۔ انہی دنوں رچرڈ نے اسے دبئی میں بننے والے ایک نئے شاپنگ مال کے متعلق بتایا، جس کے لیے اس کی کمپنی نے اپنا انٹرسٹ شو کیا تھا۔ دبئی میں تیزی سے بڑھتے ترقیاتی کاموں اور جدید نوعیت کی ہائی رائز بلڈنگوں سے نے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ رچرڈ کی بدولت وقار اس کمپنی کے ساتھ مشترکہ کاروبار کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسے ایک مال کے بعد اگلے تمام پروجیکٹس میں ان دونوں کو مل کر کام کرنا تھا۔ لیگل معاملات طے پا چکے تھے اور وقار اپنی کمپنی دبئی میں شروع کر چکا تھا۔ مال کے نقشے اپروو ہو چکے تھے اور کل باقاعدہ دونوں کمپنیوں کے ہیڈز کو لوکل اتھارٹیز کے ساتھ فائنل ڈیٹ سائن کرنی تھی۔ 2 دن پہلے اسی سلسلے میں رچرڈ پاکستان آیا ہوا تھا، کیونکہ وہ اس پروجیکٹ کا کنسٹرکشن ہیڈ تھا، اور آج وقار دبئی پہنچ گیا، جہاں کل شیخ زاید روڈ پہ بنے ان کے دفتر میں وہ معاہدہ دستخط ہونا تھا۔ کپڑے بدل کر وہ سونے کے لیے لیٹ گیا جب اس کے فون پہ عائشہ کی کال آئی۔ تم نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے وکی، رسمی سلام دعا کے بعد وہ ابو سے کہہ رہی تھی۔ آپی میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ مزید کچھ نہیں کہہ پایا۔ تم جانتے ہو میں نے تمہارے بھائی نہیں بیٹا سمجھا ہے۔ ممی ڈیڈی کی وفات کے بعد میں یہ اپنا حق سمجھتی تھی کہ تمہاری شادی میں خود کرتی، لیکن تم نے مجھ سے یہ حق چھین کر ثابت کر دیا ہے کہ تمہاری نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ بہت اپسیٹ تھی۔ آپی پلیز ایسے مت کہیں۔ آپ میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہیں یہ آپ بھی جانتی ہیں۔ میں آپ کو تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ وہ اس کی آواز سن کر مزید ڈسٹرب ہو گیا اور اسے کہنے ہی والا تھا کہ اس نے سب کچھ جھوٹ کہا ہے، لیکن اس سے پہلے عائشہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ چھوڑو یہ سب باتیں، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ مجھے تم سے کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ میری زبیر ماموں اور خرم سے بات ہو گئی ہے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمیں تمہاری خوشی میں خوش ہونا چاہیے، اور پھر شاید اسی میں اللہ کی بہتری ہو۔ زبردستی کے رشتے دیر پا نہیں ہوتے۔ حالانکہ کنزا بہت اپسیٹ ہے، لیکن میں نے اس سے بھی معافی مانگ لی ہے۔ بس اب میں جلد سے جلد پاکستان آ کر تمہاری بیوی سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس مہینے کے آخر میں میرا ارادہ ہے پاکستان آنے کا۔ سحر اور اسامہ کا ونٹر بریک بھی شروع ہونے والا ہے، اور پھر تمہارا ولیمہ بھی کر لیں گے۔ اس نے اپنے دونوں بچوں کے نام لیے۔ وہ اس کی بات سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ چند دن پہلے یہ اس کی دلی خواہش تھی کہ عائشہ اس کو سمجھے اور اسے معاف کر دے، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا عائشہ اسے ناراض رہ ہی نہیں سکتی، اور وہ جلد اسے فون کرے گی، اس لیے اس نے فوری شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ اس کا جھوٹ بری طرح اس کے گلے پڑ گیا۔ اس کو اپنی شادی کی جھوٹی خبر سنا کر 2 دن بعد اس نے اپنی بات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک قیمتی انگوٹھی بھی خریدی تھی۔ وہ اس کی والدہ سے مل کر انہیں اس رشتے کے لیے راضی کر لے گا، اور پھر جلد ہی اس سے شادی کر لے گا۔ سب پلاننگ کر کے وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا، لیکن یہاں تو بازی ہی پلٹ گئی تھی۔ عائشہ سے معاف کر کے اس کی وہ شادی قبول کر چکی تھی جو ابھی ہوئی نہیں تھی، اور اب وہ اس کی اس بیوی سے ملنے آ رہی تھی جس کا وجود بھی نہیں تھا۔ وہ سر پکڑ کر نہ بیٹھتا تو اور کیا کرتا۔ ہیلو سہرش، میں روشنی بول رہی ہوں۔ فون پہ اس کی آواز سن کر وہ فوراً بولی۔
रोशनी, अरे हाँ रोशनी, बोलो सब ठीक तो है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुमने मुझे कॉल किया है। सहरिश की आवाज़ में हैरत और बेयकीनी का मिला जुला तासुर था। सहरिश रोशनी के साथ उसी सुपरमार्केट में काम करती थी। उसका ताल्लुक भी पाकिस्तान से था और वो रोशनी से सीनियर थी। रोशनी की उसके साथ मामूली की बातचीत तो थी, लेकिन दोस्ती हरगिज़ नहीं थी, और इसकी बुनियादी वजह उसका वही लाइफस्टाइल था जो जैनी और लैंडा का था। रोशनी को वो इन दोनों से ज़्यादा बुरी लगती थी, और इसका बरमला इजहार वो कई बार बातों बातों में कर चुकी थी। जैनी और लैंडा को ना मजहब रोकता था न तहजीब, लेकिन सहरिश इस हदूद से मुस्तस्ना नहीं थी। वो चाहकर भी सहरिश से अपनी नापसंदीदगी छुपा नहीं पाती, और इस दिन के बाद तो उसकी फीलिंग्स खुलकर उसके सामने आ गई थी, जब रोशनी ने सहरिश के डिनर की ऑफ़र को ये कहकर ठुकरा दिया कि वह हराम माल से ख़रीदा हुआ खाना नहीं खा सकती। सहरिश से उसका सामना लगभग रोज़ ही होता था, और एक पेशा वराना ताल्लुक से भरकर इन दोनों के दरमियान कभी बातचीत नहीं हुई थी। वो इससे उससे भी इतना ही फॉर्मल रहती थी जितना अपनी गैर मुल्की रूममेट्स के साथ होती थी। सहरिश, मैं इस वक्त बहुत परेशानी में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, धीमी आवाज़ में उसने कहा। यह तो मेरी खुशनसीबी है जो रोशनी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उसकी कोई मदद कर सकूँ। उसके लहजे की काट को नज़रअंदाज करते रोशनी ने अपना मुद्दा बयान किया। सहरिश, मुझे 50,000 रुपये की अशद ज़रूरत है, और सिर्फ तुम ही हो जो इस वक्त मेरी मदद कर सकती हो। उसकी बेबसी पे एक कहकहा लगाते सहरिश ने उसकी शर्मिंदगी में मज़ीद इजाफा कर दिया। डियर रोशनी, तुम मुझे अपना दोस्त समझो या ना समझो, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त ही समझा है, और मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारी मदद करके। कम से कम तुमने मेरे हराम के पैसे को ना इस्तेमाल करने की अपनी कसम को तो तोड़ा। वो जिताते हुए बोली। सहरिश, ये मेरी बहन की ज़िंदगी का सवाल है। उसके दाखिले के लिए मुझे उससे 50,000 भिजवाने हैं। अगर मैंने जल्द से जल्द इस रकम का बंदोबस्त नहीं किया तो वो खुदकुशी कर लेगी। मैं वादा करती हूँ जल्द से जल्द तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी, उसने इल्तिजाइया कहा। वापसी की कौन बात कर रहा है स्वीटी, लेकिन मसला ये है इस वक्त मेरे पास तुम्हें देने के लिए इतने पैसे नहीं। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? आज रात को क्लब आ जाओ, जिमी की तरफ मेरा कुछ हिसाब निकलता है, उससे पैसे लेकर मैं तुम्हें दे दूंगी, और कल सुबह तुम अपनी बहन को वो पैसे ट्रांसफ़र कर देना, उसने कुछ सोचते हुए कहा। लेकिन इसके लिए मुझे क्लब आने की क्या ज़रूरत है? मैं तुमसे कल पैसे ले लूँगी, रोशनी ने कदरे तामुल से कहा। मैं तो आज मिडनाइट के बाद फ्रेंड्स के साथ फजीरा चली जाऊंगी। मेरा ये पूरा वीक ऑफ है, तो इसके लिए सोचा कुछ दिन आराम कर रहा हूँ। अगर तुम क्लब नहीं आना चाहती तो फिर पैसे अगले हफ्ते ले लेना, हम लोग तो इस क्लब से ही आगे चले जाएंगे, उसने लापरवाही से कहा। नहीं नहीं, मैं क्लब आ जाऊंगी। मजबूरन उसे हामी भरनी पड़ी थी। वो रात 10 बजे के करीब वहाँ पहुंची। उसे इस शहर में रहते 2 साल हो चुके थे, और इस होटल को वो दिन में कई बार देखती थी। ये पहली बार था कि वो इस आलीशान इमारत के अंदर से देख रही थी। उसकी बिल्डिंग बाहर से भी काबिल सताइश, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था ये अंदर से इतना आलीशान होगा। बिलाशुबा ये आर्किटेक्चर का नादर नमूना था। वो इमारत जितनी शानदार बाहर से नजर आती थी, उसका इंटीरियर उसे ज़्यादा महबूत कर देने वाला था। लॉबी में इस वक्त काफ़ी लोग थे जो उसे सरसरी निगाह से देख कर आगे चले गए। अब ये शुरू वाला रिपीट हो रहा सीन। क्लब में दाखिल होते वक्त उसका दिल पत्ते की तरह कांप रहा था। वो इस वक्त मजबूर ना होती तो कभी इस जगह कदम न धरती। कीमती टाइल फ्लोर पे धीमे कदमों से चलती हुई इस होटल से मुल्हका क्लब में दाखिल हो गई। अंदर का माहौल उसकी सोच से ज़्यादा हैजान अंगेज था। आगे वो सहरिश से मिली है, और ये सब आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया। अब सहरिश उसे कह रही है, वो सहरिश से पूछती है, जिमी कब तक आएगा? वो वापस क्लब की तरफ जाते हुए उससे पूछ रही थी। बस आता ही होगा, अभी इतना वक्त नहीं हुआ, सहरिश ने लापरवाही से कहा। कुछ देर बातें करने के बाद उसे एक बार स्टूल पर बैठने का कहकर दोबारा डांस फ्लोर पर चली गई। बेदिली से वो क्लब में बैठी हुई थी, जहाँ रात के इस पहर मेले का सा समा था। इस शोरो गोगा से उसके असाब पे दबाव बढ़ता जा रहा था। 12 बजे के बाद म्यूज़िक का मूड बदल जाता है। नॉन स्टॉप म्यूज़िक शुरू हो चुका था। म्यूज़िक का टेम्पो बदला तो लोगों का जोश व खरोश भी अरूज पे था। डांस फ्लोर पे इस वक्त तूफान बदतमीज़ी बरपा था। लेकिन जब उसका ज़ब्त ख़त्म हो गया तो वो वहाँ से उठकर एक बार फिर सहरिश के पास चली गई। मैं अगर मज़ीद कुछ देर यहाँ बैठी तो पागल हो जाऊँगी, उसने चिल्लाते हुए सहरिश से कहा। मैं चेक करती हूँ जिमी अब तक क्यों नहीं आया। तुम ऐसा करो, ऊपर रूम में चलकर बैठो, तब तक मैं जिमी का पता करती हूँ। क्लब से निकलकर सहरिश उसे होटल रूम की तरफ ले आई। एक कमरे के आगे रुककर उसने कार्ड से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। कमरे में अंधेरा था। कार्ड को उसने दीवार पर लगे स्विच में फंसाया तो कमरा रोशन हो गया। तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं अभी आती हूँ। सहरिश उसे इस कमरे में बिठाकर वापस चली गई। ये किसका कमरा है सहरिश? वो पूछे बगैर रह न पाई। मेरी फ्रेंड का कमरा है, आज ही बैंकॉक से आई है, चंद दिन घूमने फिरने। पिछली बार आई थी तो हमारी अच्छी दोस्ती हो गई, और ख़ुद इस वक्त नीचे क्लब में हैं। तुम बेफिक्र रहो, यहाँ बैठो, मैं जिमी का पता करती हूँ। उसे मुतमिन करने के बाद सहरिश अपने फ़ोन पे कोई नंबर मिलाती कमरे से निकल गई। वह खामोशी से सोफे पे बैठ गई। डरते उसने एक उचड़ती निगाह कमरे पे डाली। ये कमरा नहीं, एक स्वीट था। जहाज़ी साइज़ बेज कीमत बेड और मैचिंग काउच
कीमती लैंप से झलकती दूधिया लाइट, वहाँ मिनी बार भी था। अचानक लॉक खोलने की आवाज़ पे उसने गर्दन घुमा के दरवाजे की तरफ देखा। उस लम्हे कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वो बहुत हैंडसम और खुश शक्ल था। उसकी उम्र 30-31 साल के करीब थी। गंदमी रंगत और पुरकशिश ज़हीन आंखें उसकी शख्सियत को और भी मुतासिर कुन बना रही थी। उसकी शख्सियत इतनी मुतासिर कुन थी कि उसको देखकर कोई भी उसके इश्क में गिरफ्तार हो सकता था, लेकिन वो उसे देखकर बुरी तरह डर गई थी। कौन है आप और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? उसे देखते साथ वो अपनी जगह से उठी थी। रोशनी की बात पे किसी किस्म का रिएक्ट किए बगैर वो बहुत एतमाद के साथ कमरे का दरवाज़ा बंद करता उसके सामने बेड पे जाकर बैठ गया। बैठ जाओ, शाइस्ता और धीमे लहजे में कहता। वो मुसलसल उसकी तरफ देख रहा था। खौफ से कांपते वो वापस उसी सोफे पे बैठ गई। सेंट्रल एसी कमरे में भी उसे पसीना आ रहा था। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? रोशनी ने खुद पे काबू पाते उससे पूछा। मेरा नाम वकार हसन है और मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। क्या इतना तारुफ काफ़ी है? उस लहजे में कुछ था जो रोशनी समझ नहीं पाई। वैसे ये कमरा मैंने बुक किया था, वो मजीद बोला, लेकिन सहरिश तो कह रही थी ये कमरा उसकी दोस्त का है। अपने खुश्क होंठों पे ज़ुबान फिरते उसने हिम्मत करके कहा, उस लड़की ने मुझसे 1000 दिरहम कैश लिया है तुम्हें यहाँ पहुँचाने के लिए। क्या ये बात तुम नहीं जानती? उसकी बात पे हैरान होकर वो उसे बता रहा था। कौन लड़की? सहरिश? वो ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? उसे शौक लगा। उसने मुझे कहा था कि वो रात गुजारने के लिए मुझे एक लड़की फराहम कर सकती है और बदले में उसे कम से कम 1000 कैश चाहिए। वो उसे तफसीलन बता रहा था। मैं जिस्म फरोश नहीं हूँ। रोशनी हज़ियानी कैफियत में चलाई। देखो, अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा रकम चाहिए तो मैं तुम्हें ज़्यादा भी देने को तैयार हूँ। वो शाइस्ता और मुहज़्ज़ब लहजे में बोला। आई एम नॉट अ प्रोस्टिट्यूट एंड आई डोंट नीड योर मनी। प्लीज़ लेट मी गो। मैं जिस्म फरोश नहीं हूँ और मुझे आपके रुपयों की ज़रूरत नहीं। प्लीज़ मुझे जाने दे। वो गुस्से से चिल्लाई। वो लड़की कह रही थी तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हें ऐसी क्या मजबूरी है? उसके नरम लहजे में पूछे गए सवाल पे बहुत देर के रुके आंसू बह निकले। वो उसके सामने बैठी फूट फूट के रो रही थी। वकार उसे काफ़ी देर तक अपने सामने रोता देखता रहा। फिर बेडरूम फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर उसे पानी दिया जो वो एक ही घूंट में पी गई थी। प्यास से उसके हलक में कांटे चुभ रहे थे। बेदर्दी से लब्बों को काटते हुए उसने कहना शुरू किया। उसके होंठों पे जमी सुर्ख लिपस्टिक की तह में दरारें पड़ चुकी थी। मुझे इस वक्त 50,000 रुपये की ज़रूरत है अपनी बहन के दाखिले के लिए। मुझे पाकिस्तान पैसे भिजवाने हैं। अगर मैंने ऐसा न किया तो मेरी बहन अपनी जान दे देगी। वो फिर मुख्तसर लफ्ज़ों में उसने वकार को अपनी कहानी सुना दी। सारी बात सुनने के बाद उसने एक गहरी सांस ली। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं? पिछले कई सालों से एक लड़की होकर तुम्हें उन्हें सपोर्ट कर रही हो, उनकी ज़रूरतों के लिए दिन रात खुद को हलकान कर रही हो और वो तुम्हारा इस्तेहसाल कर रही हैं। तुम्हारी वालदा का फ़र्ज़ बनता था कि वो तुम्हारी मजबूरी को समझती और तुम्हारी बहन को समझाती। उल्टा वो उसकी बेवकूफ़ी का साथ दे रही हैं। वकार उसकी बात सुनकर गैर जानिबदार तबसरा कर रहा था। मेरी बहन बहुत ज़िद्दी है। हम सब उससे बहुत प्यार करते हैं और उसे पढ़ने का भी बहुत शौक़ है। मैं तो इंटर के बाद आगे पढ़ नहीं पाई, लेकिन उसने दिन रात मेहनत की है। MBA करना उसका ख्वाब है। बस इसीलिए वो इस तरह रिएक्ट कर रही है। तुम फजूल उनकी साइड ले रही हो। हालांकि मुझे तो वो लोग बहुत मटेरियलिस्टिक लगे हैं। तुम कह रही हो तुम पहले भी अपनी तमाम आमदनी उन्हें भिजवा देती हो। फीस तो हर 6 माह बाद अदा करनी होगी। अगले 2 साल तक तुम मज़ीद पैसे कहाँ से लाओगी? मैं ओवर टाइम करूँगी। 6 माह में मेरे पास इतने पैसे बआसानी हो जाएंगे कि मैं अपनी बहन की फ़ीस दे पाऊँ। फिर तो वो ये सेमेस्टर ड्रॉप कर सकती थी। इस तरह उसका साल ज़ाया हो जाता। ये इतना बड़ा मसला तो नहीं था। खैर, मैं तुम्हें 50,000 रुपये देने को तैयार हूँ। आप 50,000 तो क्या 50 लाख भी दें तो मैं आपके साथ यहाँ रात नहीं गुजार सकती। दो डोकर अंदाज में कहा गया। मेरा तुम्हारे साथ रात गुजारने का इरादा भी नहीं है। उसके बाद सुनकर रोशनी ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। उसने अगली बात नरमी से कही। मैं तुम्हें ये पैसे उधार दे रहा हूँ, जब हो मुझे वापस कर देना। लेकिन मैं कैसे आपसे उधार ले लूँ? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। अगर वापस ना लौटा पाई तो मत वापस करना, मैं शिकायत नहीं करूँगा। ये बहुत बड़ी रकम है। आपकी मेहरबानी है, आपने मेरी बात सुनी और मुझे गुनाह में मुलव्वस नहीं किया। आपको मुझ पर एहसान है, लेकिन मैं आपसे माली मुआवनत नहीं चाहती हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ किसी गुनाह के इरादे से बुलाया भी नहीं था। रोशनी, मेरे अपने चंद मसाइल हैं जो मेरी ज़िंदगी को बुरी तरह उलझा रहे हैं। मैं औरतों की इज़्ज़त का खरीदार नहीं हूँ, बल्कि एक शरीफ इंसान हूँ। इस कमरे में किसी लड़की को बुलाने का मकसद अय्याशी नहीं, बल्कि मजबूरी से जुड़ा है। अगर तुम चाहो तो मेरी मदद करके मुझे इस परेशानी से निकाल सकती हो। वो बहुत उलझा हुआ लग रहा था। आपको ऐसी क्या परेशानी है? रोशनी को अब इस शख्स से खौफ नहीं आ रहा था। वो इस लम्हे उसे बहुत मायूस और बिखरा हुआ लगा। मैंने अपनी बहन से झूठ बोला था कि मैं शादी कर चुका हूँ। इस माह के आखिर में वो अपने बच्चों के साथ मेरी बीवी से मिलने आ रही हैं। आपने उनसे ये झूठ क्यों बोला? बस सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी। तो अब आप सच बता दें। ये सब इतना आसान नहीं है। अगर तुम चाहो तो मेरी एक मदद कर सकती हो। तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चंद दिन मेरी बीवी बन के रहना होगा। जी, ये क्या कह रहे हैं आप? उसे शौक लगा। तुम्हें पाकिस्तान में मेरी बहन के सामने मेरी बीवी बनने का ड्रामा करना होगा। मैं एक शरीफ आदमी हूँ और तुम वहाँ इतनी ही महफूज रहोगी जितनी इस वक्त मेरे साथ हो।
मैं इस वक्त एक मुश्किल में फंस गया हूँ और मेरी मदद करके तुम मुझे इस मुश्किल से निकाल सकती हो। वो कभी 15-20 दिन से ज़्यादा नहीं रुकती। वो जैसे ही जाए तुम वापस आ जाना। तुम्हें आने जाने का टिकट भी मैं ही दूंगा, लेकिन इसके बाद आप उनसे क्या कहेंगे? वो पूछेंगे नहीं आपकी बीवी कहाँ गई? अजीब सी सूरत हाल थी। वो उलझ कर बोली, कुछ अरसे बाद कह दूंगा रिश्ता ख़त्म हो गया, लेकिन फिर वक्त मैं उसे कुछ नहीं बता सकता। मुझे अपने इस झूठ को निभाना ही पड़ेगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? वो उसके बाद किसी सूरत नहीं मान सकती थी। ये बंदा जो अभी कुछ देर पहले उसका खरीदार होने का दावा कर रहा था, अचानक उसे अपने घर में बीवी बनाकर रखने की बात कर रहा है। उसे खामोश देखकर वकार जैसे उसकी दिली कैफियत समझ चुका था। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता तो इस बात को जाने दो और ये पैसे रख लो। मैं जानता हूँ तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, जब हो वापस कर देना। उसने ज़बरदस्ती उसे पैसे पकड़ाते हुए कहा, आप मुझ पे इतनी बड़ी रकम का एतबार कर रहे हैं, अगर मैं भाग गई तो? उसने हैरत से कहा, थोड़े से पैसे ज़ाया हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो चंद नोट है। यहाँ तो लोग जज्बों का खून कर डालते हैं। उसने सोचते हुए कहा, तुम इस बारे में मत सोचो। मैं बंदा बंदा देख के बात करता हूँ, और फिर यहाँ मेरे बहुत से लोग हैं। तुम भाग गई तो मैं मेरे लिए तुम्हें लोकेट करना इतना बड़ा मसला नहीं है। वो बहुत पुरसकून अंदाज में अब मुस्कुराते हुए उसे बता रहा था, मेरी एक माह की छुट्टी बाकी है। अम्मी ने मना कर दिया था कि खामखा खर्चा हो जाएगा, इसलिए पाकिस्तान नहीं जा सकी। मैं अगर अप्लाई करूँ तो 1 हफ्ते तक मुझे छुट्टी मिल जाएगी। उसकी ज़ुबान से बेख्तियार निकला, ये शख्स उसका मोहसन था, उसे ना जानते हुए भी उसकी मदद कर रहा था। और फिर वो कह रहा है वो ये सब अपनी बहन की वजह से कर रहा है, उसे वकार की मदद करनी चाहिए। उसने एकदम फैसला किया, ठीक है फिर मैं तुम्हें ट्रैवल की डेट कुछ दिन में कंफर्म कर दूंगा। मेरा आदमी यहाँ तुम्हारे सफ़र का इंतज़ाम कर देगा। रोशनी की बात सुनकर उसे हैरत हुई, लेकिन खुद पे काबू पाते उसने धीमी आवाज़ में कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आऊँ। वो बेड से उठकर दरवाजे की तरफ जा रहा था। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, रोशनी ने हिचकिचाते हुए कहा। रात काफ़ी हो चुकी है, मैं छोड़ आता हूँ, पुख्ता लहजे में कहता वो बगौर उसकी तरफ देख रहा था। वो मज़ीद कुछ नहीं कह पाई। सुनो, वहाँ सामने वॉशरूम है, मुंह धो आओ, इशारे से कहता वो खुद कमरे से बाहर जा रहा था। वो सर हिलाती हुई वॉशरूम में चली गई। कई घंटों बाद उसने अपना चेहरा शीशे में देखा। खूबसूरत तो वो खैर कभी नहीं थी, लेकिन इस वक्त जो लग रही थी वो खुद ही अपना आप देख के डर गई। मेकअप के नाम पे वो सिर्फ काजल लगाती थी, जो रोने के बायस बहकर चेहरे पे अजीबोगरीब नक्शो निगार बना रहा था। रही सही कसर सहरिश की लगाई सुर्ख लिपस्टिक ने पूरी कर दी। खूब रगड़ रगड़ के मुंह धोने के बाद उसने एक बार फिर अपने चेहरे को शीशे में देखा। इस बार उसे तसल्ली हुई। अपने खुले हुए लंबे बालों को समेटती वो कमरे से बाहर निकल आई थी। वकार ने रोशनी को इसकी बिल्डिंग के बाहर ड्रॉप किया। उसका कॉन्टैक्ट नंबर और पता वो अपने पास महफूज कर चुका था। अगला लाहे अमल वो तय कर चुका था। अब उसे आयशा से उसकी ट्रैवल डिटेल्स मालूम करनी थी, ताकि उसी हिसाब से वो रोशनी को पाकिस्तान का टिकट भेजे। अपने कमरे में जाकर रोशनी ने सबसे पहले वज़ू किया और 2 नफल शुक्राने की अदा किए। अल्लाह ने उसे कितनी बड़ी परेशानी से बचा लिया था। उसे मुआवज़ों पे यकीन आ गया था। ये मुआवज़ा ही तो था जो वकार की सूरत में एक रिश्ता भेजकर अल्लाह ने उसकी इज़्ज़त की हिफाजत की थी। वो कोई शैतान भी हो सकता था, और आज रात के बाद वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहती। वो हद देर तक सजदे में गिरी वो अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। आयमा को फ़ीस के पैसे वो भिजवा चुकी थी। साबरा और आयमा के रवैयों ने उसे एक बड़ा सबक दिया था। वो लोग उसकी मेहनत की कमाई को बहुत आसानी से खर्च कर रहे थे। उसने इस दौरान उनसे कोई रब्ता भी ना किया, क्योंकि वो दिल ही दिल में उनसे नाराज़ थी। लेकिन वो जानती थी वो इनसे बहुत दिन तक नाराज़ नहीं रह पाएगी। सहरी से उसकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। उसको कॉल करने पर हर बार उसे उसका नंबर बंद मिलता। वो रोशनी के साथ इतना घटिया खेल खेल सकती थी, ये वो सोच भी नहीं सकती थी। सहरिश अच्छी तरह जानती थी रोशनी एक मजबूर किरदार की लड़की है और रुपयों के अवज़ खुद को बाजार में कभी नहीं लाएगी। उसने पिछले 2 साल में रोशनी को बहुत कनात और इस्तकामत का मुजाहरा करते देखा था। अंदर ही अंदर वो रोशनी की इस सिमत से बुरी तरह खाइफ थी, और ये रकाबत इस वक्त और भी बढ़ गई जब रोशनी ने उसके पैसों से खाने से इनकार कर दिया। अब जो रोशनी ने उससे माली मदद मांगी तो उसे कुदरत की तरफ से रोशनी को नीचा दिखाने का एक मौका मिल गया। उसको बाजार में लाकर वो उसे ठीक उसी मुकाम पर ले आई थी जहां वो खुद खड़ी थी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम जानती हो तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं तुम पे केस भी कर सकती हूँ। रोशनी से 1 हफ्ते बाद सहरिश की मुलाकात हुई तो वो बहुत गुस्से में उसने कहा था, एक तो मैंने तुम्हारी मदद की, तुम उल्टा मुझे पुलिस की धमकी दे रही हो, ये तुम भी जानती हो, और मैं भी, कि यहाँ की पुलिस गैर मुल्कियों के तमाम मामलों में कितनी गैर जानिबदार रहती है। वो उसकी बात से महसूस होते हुए डिटाई से बोली, सहरिश मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरा उस शख्स के साथ सौदा कर दिया? वो धीमी आवाज़ में बोली थी, ये तो तुम अपने आप से पूछो कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है। कितनी जिल्लत नजर आती थी मुझे तुम्हारी निगाहों में अपने लिए। उस दिन जब तुमने मेरी डिनर की ऑफ़र को ठुकरा कर हराम की कमाई का ताना मारा था, उस दिन से मैं नफरत करने लगी थी तुमसे। अपनी पारसाई और मजबूत किरदार पर बड़ा नाज था तुम्हें। मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें भी इस जिल्लत का मज़ा चखाऊं। वैसे तुम्हारा काम तो हो गया होगा। काफ़ी मालदार आदमी था, मैंने उसे बता दिया था तुम्हें बड़ी रकम चाहिए, फिर भी उसने कमीशन के तौर पर मुझे पूरा 1000 दिरहम दे दिया। वो बेशर्मी से कह रही थी। उसकी बात सुनकर वो शौक रह गई। लानत है तुम पर सहरिश, एक औरत तो क्या तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो।
تمہیں اگر یہ خوش فہمی ہے کہ اس دن میں نے اپنی عزت کا سودا کر کے اپنی بہن کے ایڈمیشن کی فیس کے پیسے حاصل کیے تو میں تمہاری یہ غلط فہمی دور کر دیتی ہوں۔ اللہ نے تمہارا ناپاک منصوبہ ناکام بنا کر نہ صرف میری عزت کو محفوظ رکھا ہے بلکہ مجھے اس حرام کمائی کے استعمال سے بھی بچا لیا جو میں تم سے ادھار لینے والی تھی۔ اپنی بات ختم کر کے اس کے چہرے پہ تعصب کی نگاہ ڈالتے روشنی وہاں سے چلی گئی۔ سہرش ناقابل یقین حیرت سے اسے اسٹور سے نکلتے دیکھتی رہی تھی۔ اگلے چند دنوں میں اس نے اپنی سالانہ چھٹیوں کے لیے اپلائی کر دیا جو منظور بھی ہو چکی تھی۔ وقار کی طرف سے اسے ٹکٹ مل چکا تھا۔ اسے 1 ماہ پاکستان میں رہنا تھا اور یہ بات وہ صابرہ کو بتا نہیں سکتی تھی، اس لیے اس نے اپنے فون کی رومنگ آن کرا لی تھی۔ اب وہ آسانی سے اپنے فون کے ذریعے ان سے رابطے میں رہ سکتی تھی۔ اگر وہ لوگ اسے کال کرتے تو ان کی کال ریسیو بھی کر سکتی تھی۔ ڈپارچر لاؤنج میں بیٹھی وہ اس وقت بورڈنگ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ 2 سال بعد پاکستان جا رہی تھی لیکن اس دوران وہ اپنی ماں اور بہن سے مل نہیں سکتی تھی۔ 2 ماہ پہلے جب اس نے صابرہ سے یہ کہا کہ اس کے نئے کانٹریکٹ کے آغاز سے پہلے اسے 1 ماہ کی چھٹی ملے گی اور وہ پاکستان آئے گی تو صابرہ نے اسے منع کر دیا۔ ان کے خیال میں یہ پیسوں کا ضیاع تھا۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس کی ٹکٹ کمپنی کے ذمہ ہے لیکن ان کے رویے سے حیران ہو کر وہ خاموش ہو گئی۔ صابرہ نے ایک بار بھی یہ اظہار نہیں کیا کہ وہ اسے ملنے کے لیے بے چین ہے اور پھر اس نے 1 ماہ سے اکٹھے کیے ہوئے اوور ٹائم کے پیسوں سے کچھ تحائف خرید کر ان دونوں کو بھجوا دیا۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ اداسی سے وہ اب ڈپارچر گیٹ کے اندر جا رہی تھی۔ ارائیول لاؤنج میں وقار اسے کچھ فاصلے پہ کھڑا نظر آ گیا، اس دن کی طرح بہترین لباس میں اور اتنا ہی جاذب نظر۔ اس دن کے برعکس روشنی نے آج مسٹرڈ شلوار قمیص پہ بڑی سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی۔ پتہ نہیں اس نے اسے دیکھ کر پہچانا بھی تھا کہ نہیں۔ روشنی اپنا ٹرالی بیگ گھسیٹتی اس کے پاس چلی گئی۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دھلے منہ کے ساتھ وہ بہت خوبصورت نہیں لیکن بہت معصوم لگ رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام۔ سفر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ لہجہ سنجیدہ تھا۔ نہیں، جواب مختصر آیا۔ چلیں، یہ کہہ کر وہ اب پارکنگ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سورج ابھی کچھ دیر پہلے ہی طلوع ہوا تھا اور آسمان پہ سورج کی کرنیں ابھی پوری طرح نہیں پھیلی تھیں۔ دونوں کے درمیان اس رسمی لیگ کے بعد مزید کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ اسے تھکا ہوا لگا، شاید اتنی صبح فلائٹ کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سو نہ پایا تھا۔ روشنی نے خود ہی وجہ سوچ لی تھی۔ وہ خود بھی تمام رات کی تھکی ہوئی تھی۔ وہ آج بھی بہت انہماک سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ یہ شہر روشنی کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وقار نہ بھی بتاتا پھر بھی وہ جانتی تھی گاڑی اس وقت کس علاقے میں جا رہی ہے۔ لیکن اسے حیرت ہوئی جب وقار نے گاڑی کسی گھر کے بجائے ایک بلڈنگ کے سامنے روکی اور اسے ایک فلیٹ میں لے گیا۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر وہ خود اندر نہیں گیا۔ تمہیں چند دن یہاں رہنا ہوگا، اندر ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی بات کرنی ہو تو اس موبائل میں میرا نمبر سیو ہے۔ ایک موبائل فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے اسے چند ضروری ہدایات دی جو آج کے دن کے حوالے سے تھی اور پھر تیزی سے واپس چلا گیا۔ روشنی فلیٹ کا دروازہ لاک کرتی اندر آ گئی۔ یہ ایک لگژری اپارٹمنٹ تھا جو بہت خوبصورتی سے سجا تھا۔ اگلے چند منٹ اس نے اس جگہ کا جائزہ لیا۔ کچن اور فریج میں بہت سا کھانے پینے کا سامان موجود تھا۔ وہ جہاز میں تھوڑا بہت کھا چکی تھی اس لیے اسے کسی چیز کی طلب نہیں تھی۔ پانی کا گلاس پی کر وہ بیڈ روم میں آ گئی۔ وہ بے تحاشا تھکی ہوئی تھی اور اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ بہت گہری نیند سوئی تھی اور اس کی آنکھ موبائل کی بیل سے کھلی۔ اسے چند لمحے لگے تھے یہ سمجھنے میں کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ اس کے موبائل فون کی آواز نہیں تھی۔ اگلے سیکنڈ میں اس نے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو، اس نے بوجھل آواز سے کہا۔ تم سو رہی تھی؟ اس نے اس کی آواز سن کر اندازہ لگایا۔ اب جاگ چکی ہوں۔ لنچ کے بعد تیار ہو جانا، تمہیں آج نتاشا سے ملنے ہے۔ میں تمہیں 1 بجے کے بعد پک کر لوں گا۔ وقار جلدی جلدی اسے بتا رہا تھا۔ اسے لگا وہ اس وقت اس سے بات کرنے کے علاوہ کچھ اور بھی کر رہا ہے یا شاید کہیں جا رہا ہے۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی یہ نتاشا کون ہے اور اسے کہاں جانا ہے۔ وہ یہ سب کہنے کے لیے لفظ سوچ رہی تھی لیکن وقار نے اپنی بات ختم کر کے دوسری طرف سے جواب سنے بغیر فون بند کر دیا۔ 1:30 بجے کے قریب وہ اسے لینے آ گیا تھا۔ وہ اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی لیکن اس کی سنجیدگی کی وجہ سے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑا بیوٹی سیلون کم اسٹوڈیو تھا جہاں ایک ماڈرن اور خوش مزاج لڑکی نے اسے نتاشا کے نام سے اپنا تعارف کروایا تھا۔ وقار کے ساتھ اس کی بات چیت سے روشنی کو اندازہ ہوا وہ دونوں کافی بے تکلف ہیں۔ فری ہو کر مجھے کال کر لینا، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ نتاشا سے بات کرنے کے بعد وہ اس سے مخاطب تھا۔ اگلے کچھ گھنٹے وہاں کی بیوٹیشین اس کے چہرے اور بالوں کو مختلف ٹریٹمنٹ دیتی رہی اور وہ خاموشی اور بے دلی سے انہیں ان کا کام کرنے دے رہی تھی۔ قیمتی کپڑوں اور جوتوں کا ڈھیر تھا۔ ان میں ایک لباس کو نتاشا نے اس کے لیے سلیکٹ کیا۔ بیوٹیشین اس کا میک اپ کر رہی تھی اور روشنی آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی، اپنے چہرے پہ ایک بھرپور نگاہ ڈالی۔ وہ اچھی لگ رہی تھی لیکن یہ بہت حیرانی کی بات تھی کہ میک اپ سے اس کا چہرہ یکدم بدلا نہیں تھا بلکہ کافی نیچرل لک آ رہی تھی۔ اتنے عرصے سے وہ سینکڑوں عرب عورتوں کے میک اپ زدہ چہرے دیکھ چکی تھی۔ وہ بہت بولڈ میک اپ کرتی تھی۔ بہت زیادہ گہرے شیڈز کی لپسٹک اور آئی شیڈز عرب خواتین میں بے حد مقبول تھیں۔ بہت اچھی لگ رہی ہو تم۔ ہیئر اسٹائلسٹ اس کے بال بنا چکی تھی۔ اس کے لمبے بالوں کو بہت معمولی سی کٹنگ سے ایک خوبصورت اسٹائل دیا گیا۔ اینڈ ناؤ یو آر ریڈی، نتاشا نے اسے دیکھ کر کہا۔ وہ اب اس کا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ لپ کلر تھوڑا لائٹ نہیں، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ میک اپ کے نام پہ ایک ڈارک لپسٹک تو ہونی چاہیے تھی۔ اسے تھوڑی مایوسی ہوئی تھی۔ وقار کی اسپیشل ہدایت ہے کہ میک اپ لائٹ رکھا جائے، اس لیے ہم نے
न्यूड शेड इस्तेमाल की हैं। वो लापरवाही से कह रही थी, लेकिन उसकी बात सुनकर रोशनी काफ़ी शर्मिंदा हुई। वकार ने सख्ती से मना किया था कि तुम्हारे बालों को हरगिज़ काटा ना जाए। वो अब उसके बालों को अपनी उंगलियों से सेट कर रही थी। ये सारे ड्रेसेस तुम्हारे साथ जाएंगे। अगले 3 दिन मेरी ब्यूटिशियन तुम्हें मेकअप का ट्यूटोरियल देने घर आएगी, फिर तुम खुद ही ऐसा ही मेकअप करने लगोगी। रोशनी जानती थी इतना तरद्दुद क्यों हो रहा है। वो वकार हसन की बीवी की हैसियत से उसकी बहन से मिलने वाली थी। वो किसी भी राह चलती लड़की को अपनी बहन से नहीं मिलवा सकता था। एक आम सी लड़की को खास बनाकर अपनी बहन के सामने बोले झूठ का भरम रखने की खातिर वकार को इतना तो करना ही था। उसने एक गहरी सांस ली। अपनी शादी पे बुलाना मत भूलना। वो अब दोस्ताना लहजे में बात कर रही थी। मेरी शादी? उसे हैरत हुई। हाँ हाँ, तुम्हारी शादी है ना अगले महीने, मुझे वकार ने बताया था। अमेरिका जाकर हमें भूल मत जाना। वो उसे हंसते हुए कह रही थी। उसकी बात का रोशनी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो नहीं जानती थी वकार ने उसे क्या बताया था, और नताशा की बात से वो कोई सियाको सवाब नहीं निकाल पाई थी। वकार उसे लेने आया था और उस पर एक सरसरी निगाह डालकर अब वो नताशा से बात कर रहा था। अगले 3 दिन में नताशा की तरफ से भेजी गई ब्यूटिशियन ने उसे काफ़ी कुछ सिखा दिया, और वो जानती थी कि खुद भी अपना मुनासिब सा मेकअप कर ही सकती है। इन तमाम दिनों में वकार से उसकी एक बार भी मुलाकात नहीं हुई। वो उसे दिन में 1-2 बार खैरियत पूछने के लिए कॉल करता। तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? कॉल बंद करने से पहले वो उससे पूछता, और वो उसका जवाब हर बार ना में होता। वकार से उसकी अगली मुलाकात 4 दिन बाद हुई। वो उसे लेने आया था। गाड़ी एक शानदार घर के सामने रुकी, और चौकीदार उसके हॉर्न देने पे अब से आहनी दरवाज़ा खोल रहा था। उसका ज़बान डिक्की से निकाल कर वो खुद घर के दाखिली दरवाजे से अंदर चला गया। उसकी तकलीफ में रोशनी इस आलीशान घर में दाखिल हुई। बाहर की तरह घर का अंदरूनी हिस्सा भी काबिल सताइश था। हॉल कमरा बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। फर्श पे बिछे बेशकीमत कालीन और दीवारों पर लगी कीमती तस्वीर मकीन की इमारत से ज़्यादा उसके बाज़ौक होने की तर्जुमानी कर रही थी। हैरान नज़रों से वो इस जगह को देख रही थी और कदम आगे नहीं बढ़ा सकी। शायद वकार ने उसका रुकना महसूस कर लिया। वो पीछे मुड़कर अब उसी को देख रहा था। उसे अपनी तरफ मतवजा पाकर वो तेज़ी से कदम बढ़ाती उसके पीछे चली गई। कॉरिडोर से बाई तरफ वो एक कमरे के सामने रुककर उसका दरवाज़ा खोल रहा था। ये हमारा कमरा है। मुलाजिम उसका सामान अब कमरे में रख रहा था। तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुलाजिम से कह सकती हो। कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए उसने रोशनी से कहा, कल रात को आयशा आपी पाकिस्तान पहुंच रही हैं। अगले 15 दिन तुम्हें यहाँ इसी कमरे में ही रहना होगा। वो बेबसी से उसकी तरफ देख रही थी। मुझे ऐसी नज़रों से मत देखो रोशनी, तुम यहाँ पूरी तरह महफूज हो। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। मुझे ऐसे उसके अनकहे लफ्ज़ों को भी समझ गया। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई और आपकी बहन को सब कुछ पता चल गया तो। अगर उन्होंने मुझसे पूछा हमारी शादी कब और कहाँ हुई, मैं किस फैमिली से हूँ और मेरे वालिदैन कौन हैं, तो मैं उन्हें क्या बताऊँगी? वो बहुत सारे सवाल जो कई दिन से उसके जहन को उलझा रहे थे उसने एक ही सांस में पूछ डाले। अगर वो तुमसे पूछे, तुम यही कहना हम दुबई में मिले थे, तुम्हारी फैमिली भी दुबई में है, बाकी सब तुम मुझ पे छोड़ दो। वो यहाँ मेरी बीवी से मिलने आ रही हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन करने नहीं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप उन्हें सब सच क्यों नहीं बता देते? इतने सारे झूठ बोलने की बजाय एक सच बोलकर आप इस सारी मुश्किल से निकल सकते हैं। ये सब कहना जितना आसान है, इस पे अमल करना उतना ही दुश्वार। सच बताने की सूरत में मुझे उसकी नंद से शादी करना पड़ेगी, जो मैं किसी कीमत पर नहीं कर सकता, और वैसे भी मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहता। उसने नज़रें चुराते हुए कहा। उसने उसे ये नहीं बताया कि शादी ना करने का फैसला उसने चंद हफ्ते पहले किया था, वो भी अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा खाने के बाद। अपने टाई की नॉट ढीली करता वो अब ड्रेसिंग रूम में घुस गया था। उसका कोट पेट पे पड़ा था। रोशनी ने एक नज़र इस खूबसूरती से सजे कमरे पर डाली, फिर उसकी नज़र सामने पड़े काउच पे डाल टिकी। उसके रात को सोने का इंतज़ाम हो चुका था। वो रात और उससे अगली तमाम रातें उसने उसी सोफे पे सोकर गुजारनी थी। अगली सुबह उसकी आंख दरवाजे पे होने वाली दस्तक से खुली। वो रात सोफे पे सोई थी और वकार ने उसके वहाँ सोने पे कोई कमेंट नहीं किया, ना ही उसने इसकी जगह खुद सोफे पे सोने की ऑफ़र की। दस्तक की आवाज़ पे वो दोनों एक साथ जागे। मुलाजमा काफ़ी लाई है, तुम यहाँ आ जाओ, वकार ने जल्दी से कहा। अपना तकिया बेड पे रखकर वो अब कमरे का दरवाज़ा खोलकर खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम रोशनी बेटा, ये इफ़त भी थी। कल रात ही वकार ने उससे उसका तारुफ करवाया था और उन्होंने वकार की दुल्हन को डेरे दुआएं दी थी। वकार ने कहा यह खातून उसके घर में काफ़ी लंबे अरसे से हैं और इसी के आबाई गाँव से हैं। वैसे तो घर के बाकी मुलाजमीन को भी यही बताया गया था कि वो मिसिज़ वकार हसन है। वालेकुम अस्सलाम इफ़त भी, उसने खुशी अखलाक़ी से कहा। उसने काफ़ी के ट्रे लेकर वो अब दोबारा कमरे का दरवाज़ा बंद चुकी थी। नाश्ते की मेज़ पर दोनों एक दूसरे से इतने ही लाताल्लुक़ थे जितना कल रात इस कमरे में। मुलाजमा उसे मुख्तलिफ़ चीज़ें सर्व कर रही थी और वो मुस्कुराते हुए उसकी बनाई डिशेस चख रही थी। वकार के ऑफिस जाने के बाद वो अपने कमरे में आ गई। जहाज़ी साइज़ खिड़की पे 20 पर्दे डले थे। उसने खिड़की के पर्दे की डोरी खींची। सामने का मंजर देखकर वो फ्रीज हो गई। कमरे के बाहर एक खूबसूरत स्विमिंग पूल था। इसके दोनों तरफ सब्ज़े की क्यारियाँ थी। पूल के इतराफ बहुत कीमती पत्थर लगा था। ये जगह पैटिव थी। सामने दीवार पे एक कदे आदम आईना लगा था और छत की जगह लकड़ी की कीमती आर्चीज़ बनी हुई थी। ग्लास डोर खोलकर वो
पैटीफ में आ गई। स्विमिंग पूल के प्याले में भरा पानी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। उसे नहीं मालूम वो कितनी देर इस पूल के किनारे बैठी रही। उसे वहाँ बहुत सुकून मिल रहा था। दोपहर का खाना उसने नहीं खाया। घर में आज रात के खाने पे काफ़ी एहतमाम था। ये वो किचन में जाए बगैर भी जानती थी। उसे इस घर के किसी भी मसले से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे यहाँ अगले चंद दिन गुजार कर वापस चले जाना था। रात के 9 बजे आयशा और उसके बच्चों को लेकर वकार घर पहुंचा। आयशा से मिलते हुए वो जितना झिझक रही थी, उसकी खुशी अखलाकी और मोहब्बत देखकर वो इतनी ही पुरसुकून हो चुकी थी। वकार ठीक कह रहा था। उसने उससे कुछ भी नहीं पूछा। जो पूछना था वो अपने भाई से पूछ चुकी थी। एमरल्ड ग्रीन कलर के नफीस स्टोन वर्क वाले सूट में मुनासिब मेकअप के साथ वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। आयशा को उसकी कम गोई और मासूमियत पसंद आई थी। वकार से उसके शिकवे गिले ख़त्म हो गए। तुमसे मिलकर तो मुझे तसल्ली हो गई है। इसने किसी ठीक बंदी का इंतखाब किया है शादी के लिए, वरना तो आजकल की लड़कियां ओफ, ना कोई फैमिली वैल्यूज़ होती हैं और ना अपनाइत। इसलिए तो मैं इतनी भागम भाग पाकिस्तान आई, वरना इसे इस तरह मुझे बताए बगैर शादी करने पे इतनी जल्दी माफ़ करने वाली नहीं थी मैं। वो उसे हंसते हुए बता रही थी, आपकी बहन बहुत अच्छी है और आपसे प्यार भी बहुत करती हैं। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है उनसे सच छुपाते हुए। वो उसे कहे बगैर नहीं रह पाई। अगर आयशा को वो अच्छी लगी थी तो उसे भी आयशा पसंद आई थी। इतने बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ होने के बावजूद वो उसे बहुत शाइस्ता लगी थी। उसकी बातों में ऊंचे ख़ानदान और एलीट क्लास से ताल्लुक़ होने की झलक नहीं थी। ये बात तो मुझे भी डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन मेरे पास इसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो लैपटॉप खोले बेड पे बैठा था। पता नहीं वो सच में इतना मसरूफ़ था। ये रोशनी को नज़रअंदाज करने के लिए ये सब कर रहा था। अगली सुबह घर में खूब गहमा गहमी थी। वकार तो सुबह ही ऑफिस चला गया। आयशा के बच्चे उसके बाद बहुत फ्रेंडली हो रहे थे। वो लोग कहीं घूमने जाना चाहते थे और उनके इसरार पे वो भी इनके साथ ही गई थी। वकार का ड्राइवर उन्हें उनकी मतलूबा जगहों पे घुमाता रहा। दोपहर में वो चारों घर वापस आए। आयशा उसे लेकर काफ़ी शॉपिंग करती रही थी। ये मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ। एक गोल्ड के सेट को खरीदते हुए उसने रोशनी से कहा। वो सेट बहुत कीमती था। गोल्ड और कुंदन से बना वो नेकलेस किसी के भी होश उड़ा सकता था। ये तो बहुत महंगा है। रोशनी ने हैरत से कहा। तो क्या हुआ, अब मैं अपनी प्यारी भाभी को कोई मामूली तोहफा थोड़ी दूंगी। वो बहुत मोहब्बत से बोली थी। उसकी शर्मिंदगी और भी बढ़ गई। ये लोग मुझे क्या समझ रहे हैं और मैं क्या हूँ। 2000 दिरहम के एवज किसी के साथ उसकी बीवी होने का ड्रामा कर रही हूँ। अगर ये लोग सच जान ले तो ये सब मुझसे नफरत करेंगे और मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। उनकी वापसी दोपहर में हुई और रोशनी इसके बाद स्विमिंग पूल के किनारे बैठी यही सोच रही थी। उसका ज़मीर उसे बार बार मलामत कर रहा था और ये सब सोचते हुए उसकी अपनी माँ और बहन से शिकायतें बढ़ती जा रही थीं, जिनकी बेहिसी उसे इस मकाम पर ले आई थी। तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? वकार की आवाज़ सुनकर वो ठटक गई। वो काफ़ी देर पहले ऑफिस से आया था और कमरे में आकर उसने रोशनी को पुल के किनारे बैठा देख लिया था। कपड़े बदलने के बाद भी वो उसे इसी पोजीशन में बैठी नजर आई। उसके लंबे खूबसूरत बाल कमर पे फैले हुए थे। बहुत देर तक जब वो कमरे में नहीं आई तो वकार खुद उसके पास चला आया। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मैं ऐसे ही यहाँ बैठी थी, वो धीमी आवाज़ में बोली। आयशा भी तुम्हारा पूछ रही थी। वो खुद भी कमरे से बाहर जा रहा था। मुझे आपसे कुछ कहना था। रोशनी ने अलमारी में से एक ज्वेलरी बॉक्स निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। बोलो। कमरे का दरवाज़ा खोलते खोलते वो वापस मुड़ा। ये आयशा आपी ने मुझे दिया है, शादी का गिफ्ट। वो उसे डब्बा पकड़ाना चाह रही थी। अच्छा है, उसने सरसरी निगाह डालकर तबसरा किया, लेकिन डब्बे को हाथ नहीं लगाया। ये आप रख लें, रोशनी ने अगली बात कही। मैं इसका क्या करूँगा? आपी ने ये तुम्हें दिया है, उन्होंने ये आपकी बीवी को दिया है। उसकी बात सुनकर वकार खामोश हो गया था। आपी तुम्हें बुला रही हैं। उसे कोई भी जवाब दिए बगैर वो कमरे से निकल गया। वो कमरे में अकेली थी। रात को वकार इन सबको डिनर पे बाहर ले गया था। इसके बाद कपड़े बदल कर वो बाहर निकल गया। रोशनी को भी नींद नहीं आ रही थी। वो ये भी नहीं जानती थी वकार कब वापस आएगा। कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा था, लेकिन इस वक्त किसी मुलाजिम को कहना उसे मुनासिब नहीं लगा। यही सोचकर वो खुद किचन में आ गई। अपने लिए कॉफ़ी बनाते हुए उसे इंटरकॉम बजने की आवाज़ आई। इस वक्त किचन में उसके अलावा कोई मुलाजिम नहीं था। उसने इंटरकॉम उठाया। एक कप कॉफ़ी स्टडी में लाना। ये जाने बगैर कि दूसरी तरफ कौन है, वकार ने मुख्तसरन कहा। उसे उसकी इतनी देर तक कमरे में ना आने की वजह अब समझ आई। अपनी कॉफ़ी का कप उठाकर वो उसे स्टडी में देने चली गई। बड़ी जल्दी बन गई कॉफ़ी। अपनी टेबल पर रखा कॉफ़ी का कप उठाते उसने कॉफ़ी लाने वाले की तरफ देखा। वो कंप्यूटर पर मसरूफ़ था। मुख्तलिफ फाइल्स और नक्शे टेबल पर फैले हुए थे। रोशनी को कॉफ़ी लाते उसने नहीं देखा। तुम क्यों कॉफ़ी लाई? मैंने तो इशरत से कहा था। किचन में इस वक्त कोई नहीं था। मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी तो आपके लिए भी बना ली। उसने उसे ये नहीं बताया कि वो अपना कॉफ़ी का कप उसके लिए ले आई। थैंक यू, वो तकल्लुफ़ से बोला था। आने वाले दिनों में रोशनी इस घर का अहम रुकन बन चुकी थी। वो ना सिर्फ आयशा की पसंदीदगी हासिल कर चुकी थी, बल्कि इस घर के मुलाजमों के दिलों में भी उसके लिए बहुत इज़्ज़त और एहतराम था। 8-10 दिन में कभी उसने इन पे हुक्म नहीं चलाया था। उनके साथ बहुत महज़्ज़ब और शाइस्ता लहजे में बात करने वाली अपनी बेगम साहिबा को वो क्यों ना पसंद करते। उस रात के बाद अगर वो स्टडी में होता तो रोशनी उसके बगैर कहे उसे कॉफ़ी का कप दे आती थी।
वकार के मुतालिक उसने जब जब सोचा वो उसे बहुत कम गौर बेज़रर सा इंसान लगा। कभी कभी वो उसे बहुत उदास लगता। बहुत बार उसने उसे डिस्टर्ब देखा। वो समझ नहीं पाई थी कि ऐसी कौन सी तकलीफ़ और दुख है जो उसकी आंखों में नज़र आता है। रोशनी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया गुर्बत थी। वो आज भी अपने घर वालों की बेइतनाई का जिम्मेदार अपने माशी हालात को समझती थी। वो दुखी थी और यही दुख उसे वकार की आंखों में भी नजर आता था। लेकिन वकार के पास तो सब कुछ था, वो दौलत जो सब कुछ खरीद सकती थी। फिर उसे क्या परेशानी थी? वो गलत थी। दौलत से वफादारी और खलूस नहीं खरीदा जा सकता, मोहब्बत नहीं खरीदी जा सकती। आयशा इस दौरान हासलपुर का चक्कर भी लगाई थी। उसकी ख्वाहिश थी कि रोशनी भी उसके साथ चले, जहाँ उसके चंद धदियाली रिश्तेदार रहते थे। लेकिन वकार ने कहा था वो आजकल मसरूफ़ है और वो चाहता है रोशनी उसके साथ ही जाए। आयशा ने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया और दोबारा उसे चलने के लिए नहीं कहा। वलीमे की बात को भी वकार ने इसी तरह टाला था। आयशा खुद भी वकार के नए प्रोजेक्ट से वाकिफ़ थी और उसकी मसरूफियत के पेश नज़र वो उसे मजबूर नहीं कर सकी थी। वलीमा हम आपकी अगली विज़िट पे रख लेंगे, अभी तो मुझे इतने काम हैं कि सोच है आपकी। ये तो आपकी वजह से मैं आज कल पाकिस्तान में हूँ, वरना दुबई में होता। और वो इतना गलत कह भी नहीं रहा था। इस दौरान ना चाहते हुए भी उसे एक दिन के लिए दुबई जाना पड़ा था। मामू का वलीमा समर हॉलीडेज़ में कर लेंगे मामा, उस वक्त पापा भी हमारे साथ आएंगे, सहर ने कहा था। वो सब उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। सवाए रोशनी के चंद दिन में वो इस हंस से मुस्कुराते पिक्चर परफेक्ट सीन से गायब हो जाएगी और दोबारा कभी इनसे मिल नहीं पाएगी। इस घर में उसकी पसंदीदा तरीन जगह वो स्विमिंग पूल था। पानी के पास बैठे उसे वक्त के गुजरने का एहसास भी नहीं होता था। वकार ने उसे कई बार इस एक जगह बैठे देखा था। वो जानता था वो क्या सोच रही है। वो इसके हालात से वाकिफ़ था। उसकी ज़िंदगी की एक डार्क साइड का चश्मदीद गवाह था। उसे इस मासूम लड़की पर तरस आता था जो मतलबी रिश्तों की भेंट चढ़ी हुई थी। आयशा के जाने के 2 दिन बाद रोशनी की दुबई की फ़्लाइट कंफर्म थी। जाने से पहले वो वकार को वो सारे ज़ेवरात वापस कर रही थी जो वकार और आयशा ने उसे दिए थे। ये भी आपका है। उसका मोबाइल फ़ोन वापस करते हुए उसने धीमे लहजे में कहा, ये कुछ पैसे रख लो रोशनी। चंद नोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए वकार ने नज़रें चुराईं। आप अगर इस सब का मुआवजा अदा करना चाहते हैं तो वो आप पहले ही मुझे देख चुके हैं। ये कीमत नहीं बल्कि इस एहसान के लिए है जो तुमने मुझ पे किया। एहसान तो आपने किया है मुझ पर, मैं तो सिर्फ बदला चुकाया है। मेरा ख्याल है फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, हमें चलना चाहिए। मुस्कुराते हुए उसने अपना सामान उठाया और कमरे से निकल गई। वो आज वापस जा रही थी, वो जाने के लिए ही आई थी। सुबह के 4 बज रहे थे। एक चौकीदार के सिवा किसी ने उसे वहाँ से जाते नहीं देखा। बाहर जाने से पहले उसने एक नज़र इस घर को देखा जहाँ उसे दोबारा कभी नहीं आना था। इस घर और यहाँ के मकीनों ने उसे बहुत इज्जत दी थी। जहाँ रुककर वो ज़िंदगी के इस खूबसूरत रंग से आशना हुई थी जिससे पहले वो अनजान थी। उसका तारुफ मोहब्बत से हुआ था, ये जानते हुए भी कि इस मोहब्बत का कोई अंजाम नहीं, ये एक तरफा जज्बा है। वो अपने दिल को रोक नहीं पाई थी। वो अपने दिल के हाथों मजबूर थी। जाने से पहले वो उससे आंखें नहीं मिला पाई। उसे लगा था वो उसकी तरफ देखेगी तो वकार ज़रूर जान जाएगा कि उसके दिल में क्या है। वो उसकी दी हुई हर चीज़ वहाँ छोड़ आई थी। उसके सारे कपड़े उसी वार्डरोब में लटके थे। जाते हुए वो अपने 2 साल पुराने कॉटन के सूट और काली चादर में थी, लेकिन वो वहाँ से खाली हाथ नहीं आई थी। दुबई पहुंचकर वो अपनी जॉब में मसरूफ़ हो गई। वकार ना दिल से निकलता था ना दिमाग से, और जब याद आता तो बहुत याद आता था। आजकल वो ओवर टाइम भी कर रही थी और बगैर किसी छुट्टी के लगातार काम करते उसे तीसरा हफ्ता था। आयमा की फ़ीस के पैसे इकट्ठे करने के लिए उसे ये सब करना था। रात को थक कर बिस्तर पर लेटी तो सोने से पहले जो आखिरी शबीह जहन के पर्दे पे बंद थी वो वकार की होती। सुबह उठकर जो पहला शख्स याद आता वो वकार होता। उस शख्स ने उसके दिलो दिमाग को कुछ ऐसे ही अपनी गिरफ्त में लिया था कि वो इस शिकंजे से खुद को छुड़ा नहीं सकती थी और छुड़ाना चाहती भी नहीं थी। वो नहीं जानती थी उसे वकार से मोहब्बत क्यों हुई। वो पुरकशिश शख्सियत रखता था, खूबसूरत था, शाइस्ता था, दौलतमंद था और पढ़ा लिखा था। इसमें बहुत सी खूबियाँ थी, लेकिन ऐसी खूबियाँ तो उसने यहाँ बहुत से मर्दों में देखी थी। उसके स्टोर पे आने वाले बेशुमार कस्टमर जो ना सिर्फ अच्छी शख्सियत के मालिक थे बल्कि शाइस्ता और दोस्ताना थे। उसे इन सबसे मुस्कुराकर बात करना होती, लेकिन उनमें से कोई भी उसके जहन पे अपना नक्श नहीं छोड़ पाया था। वो अगले पल उन्हें भूल जाती थी। शायद वो वकार के साथ काफ़ी दिन गुजार कर आई थी, इसलिए उसे उसकी आदत हो गई थी और आहिस्ता आहिस्ता वो उसे भूल जाएगी। शुरू शुरू में उसने अपने आप को यही कह के तसल्ली दी, लेकिन 2 माह बाद भी वो शख्स उसके हवासों पे उसी तरह सवार था। वो आज भी आंखें बंद करती थी, उसे उसका चेहरा सोचना नहीं पड़ता था, बल्कि वो खुद ब खुद सामने आ जाता था। आज उसे स्टोर से वापस आते काफ़ी देर होगी। वो जल्दी घर आ जाती अगर रास्ते में एक हादसे की वजह से ट्रैफिक जाम ना होता। बस से उतर कर वो बिल्डिंग के अंदर जा चुकी होती अगर उसे बिल्डिंग की बाई तरफ वो दिखाई ना देता। एक बार फिर उसके साथ वही हो रहा था जो पिछले 2 माह में कई बार हो चुका था। ये उसे दोबारा देखने की उम्मीद थी जो वो बार बार उसे अपने इर्द गिर्द फिरते लोगों में ढूंढने की कोशिश करती थी। उस दिन वो मॉल से निकल रही थी जब उसे लगा वो उसके पास से तेज़ी से गुजरा है। वो दराज कद था, उसने वही चेकर्ड शर्ट पहन रखी थी जैसी उसने वकार को पहने देखी थी। वो बेतहाशा उसके पीछे भागी। उसके साथ स्टोर से अपनी शिफ्ट ख़त्म करके निकलने वाला अमला उसे हैरानी से देख रहा था।
वकार रुके, उसके करीब पहुंचकर वो चिल्लाई। उस शख्स ने मुड़कर उसे देखा, लेकिन वो कोई और था। माफ़ कीजिएगा, मुझे गलत फहमी हुई थी। माजरत करती वो वापस अपने कुलीग्स के पास आ गई, और ये एक बार नहीं बार बार हुआ। वो जानती थी अपने काम के सिलसिले में वो आए दिन दुबई आता रहता है, और ये कोई हैरानगी वाली बात न होती अगर वो इसे इस छोटे से शहर में मिल भी जाता, लेकिन उसे कभी नहीं मिला। सड़क को झटक कर उसने बिल्डिंग के स्टेप पे पाँव रखा। रोशनी। वकार की आवाज़ पे रोशनी के बढ़ते कदम रुक गए। बेयकीनी से मुड़कर उसने अंधेरे में खड़े शख्स को देखा। वो बेख्तियार उसकी तरफ आई, आंखों में नाकाबिले यकीन हैरत लिए वो उसे यकटक देख रही थी। आप यहाँ? चंद लम्हे उसे देखते रहने के बाद उसने खुद पे काबू पाते हुए कहा। वो उसकी बात सुनकर मुस्कुराया था। अपनी उसी छा जाने वाली शख्सियत के साथ वो ग्रे शर्ट और ब्लैक पैंट में पूरे 2 महीने बाद उसके सामने खड़ा था। अगर तुम फ्री हो तो कुछ देर के लिए मेरे साथ चल सकती हो, वो उससे पूछ रहा था। बेख्तियारी में उसका सर इस बात में हिला। वो उसे इनकार कर ही नहीं सकती थी। वो आज भी गाड़ी इतनी ही खामोशी और इन्हमाक से ड्राइव कर रहा था। वो दोनों अब कार्नश पे आगे थे। आसमान पे 14वीं का चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। समुंदर की तेज़ हवा और उससे उठती लहरों का शोर, ये सब कितना भला लग रहा था। वो दोनों एक बेंच पे बैठे थे, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के दिल के हाल से बेनियाज। मुझसे शादी करोगी रोशनी? उसने करंट खाकर उसकी तरफ देखा। वो इससे हर बात की उम्मीद कर सकती थी, सिवाय इस बात के। क्या कहा आपने? वो नाकाबिले यकीन हैरत से बोली। शादी करोगी मुझसे? चंद दिनों के लिए नहीं, बल्कि उम्र भर के लिए। तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ, चलोगी मेरे साथ? बहुत संजीदा, बहुत कंपोज लहजे में कहता वो उसकी आंखों में देख रहा था। अचानक इस फैसले की वजह उसके मुंह से निकला था, हालांकि कहना तो चाहती थी बसरो चशम, लेकिन यह अना भी इंसान को कैसे इम्तिहान में डाल देती है। अपने इस फैसले की असल वजह तो मैं भी नहीं जानता, और यहाँ आने से पहले तक मैं ये भी नहीं जानता था कि मैं तुम्हें शादी का प्रपोजल दूंगा। खुद को बहुत तावीलें दे चुका हूँ कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जितना तुम्हें भूलने की कोशिश करता हूँ तुम उतना याद आती हो। बुरी तरह मेरे हवास पे छा गई हो। मैं बस इतना जानता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है रोशनी। आयशा आपी की वजह से? बदगुमानी का बादल लहराया। नहीं, अपने लिए। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी। अम्मी, मैं शादी कर रही हूँ। वो मुझे दुबई में मिला है और उसने मुझे प्रपोज़ किया है। मैं उसे आपसे मिलवाना चाहती हूँ। एक सांस में उसने माँ को वो सब कह सुनाया जो वो कल से दिल में कई बार दोहरा चुकी थी। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो रोशनी? इसी दिन का खौफ था मुझे हमेशा से, इसलिए मैं नहीं चाहती थी तुम दुबई जाओ। क्या कहूँगी मैं लोगों से कि मेरी बेटी ने दुबई में शादी के लिए लड़का पसंद कर लिया है? साबरा का जवाब उसकी खुशी पे घड़ों पानी डाल गया। लेकिन अम्मी, मैं आपकी मर्जी और पसंद से उससे शादी की बात कर रही हूँ, और ये कोई मायूब बात नहीं। उसने ताज्जुब से पूछा। तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन मेरे लिए है। वैसे तो तुम बड़ा कहती थी, सारी ज़िंदगी माँ और बहन का ख्याल रखने के दावे करती थी, लेकिन एक लड़का पसंद आते ही तुम्हें माँ और बहन भूल गई। सोचा है मेरा और आइमा का क्या होगा, किस तरह गुजर बसर होगी हमारी? तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो रोशनी? खुदगर्जी का ताना देने वालों ने खुदगर्जी की इंतहा कर दी। उनकी बात सुनकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर एक आखिरी बात कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। अम्मी, मैं कल सुबह निकाह कर रही हूँ। चंद माह पहले साबरा और आयमा के रवैये की तकलीफ को वो जहर का घूंट समझकर पी गई थी, लेकिन आज उसे एहसास हो गया था वो दोनों उसका इस्तेमाल कर रही हैं। अपनी ज़रूरियात की वजह से उसकी माँ उसकी शादी के फैसले से नाखुश थी। उन्हें खौफ था कि रोशनी शादी के बाद उन्हें सपोर्ट नहीं करेगी। उन्होंने ये नहीं बता गई कि वकार ने उसे खुद कहा था वो आयमा की तालीम मुकम्मल होने तक उसके घर वालों की जिम्मेदारी उठाएगा। वो उनकी बेहिसी और लालच को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो अपनी माँ की मर्ज़ी और शमूलियत के बगैर शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, लेकिन कभी कभी जो हम सोच नहीं पाते वो कुदरत का तय करदा होता है। उनका निकाह दुबई में हुआ और अपनी जॉब से रिज़ाइन करके वो उसके साथ एक बार फिर उसी घर में वापस आ गई, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किए बगैर और किसी पेशगी नोटिस के बगैर। नौकरी से इस तरह रिज़ाइन करने का मतलब बहुत से लीगल इश्यूज़ की सूरत में सामने आता, जिसमें सबसे बड़ा मसला दुबई के वीज़े पे ताउम्र बैन था। और ये सब हो भी जाता अगर उसका शोहर वकार हसन ना होता, जो खुद वहाँ एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था, और सारी लीगल कॉम्प्लिकेशंस का हल उसके पास था। इस घर में सब कुछ वैसा ही था। इफ़त भी उसे देखकर निहाल हो गई। बाकी के मुलाजमों ने भी उसका पुरजोश इस्तकबाल किया। वो सब यही जानते थे कि रोशनी अपनी माँ की बीमारी की वजह से एमरजेंसी दुबई गई है। आयशा और उसके बच्चों की तरह घर के मुलाजिम भी उससे मानूस हो गए थे और उसकी वापसी पे बहुत खुश थे। उसकी हर चीज़ कमरे में उसी जगह पड़ी थी जहाँ वो छोड़ के गई थी। जानती हो तुम्हें मेरे अलावा इस घर में सबसे ज़्यादा किसने मिस किया है? वकार ने उसका हाथ पकड़ कहा। सिल्वर ग्रे साड़ी में वो बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। वकार ने एक कीमती हीरो जड़ी अंगूठी उसकी उंगली में पहनाई। अच्छी लग रही है। उसके हाथ की पुष्ट को चूमते हुए वो बोला। आपने बताया नहीं मुझे घर में और किसने मिस किया? वो तजस्सुस से पूछ रही थी। स्विमिंग पूल ने, जहाँ तुम घंटों बैठी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती थी। वो मुस्कुरा दी। मुझे वो जगह बहुत पसंद है। बड़ा सुकून मिलता था वहाँ बैठकर। ज़िंदगी में इतनी उलझनें थी जिन्हें सोचते हुए मैं खुद उलझ जाती थी। ऐसे में दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर बड़ा रिलैक्स फील करती थी मैं।
वो उदासी से बोली, बहुत सादा और मासूम हो तुम रोशनी, तुम्हारा दिल बहुत शफाफ है। मैं जानता हूँ तुम अपनी अम्मी और बहन की नाराज़गी से अपसेट हो, लेकिन डोंट वरी, हम कल जाकर उन्हें मना लेंगे। उसने उसे बहलाते हुए कहा, क्या अब भी कोई उलझन बाकी है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, उसकी आंखों में देखते हुए उसने नफ़ी में सर हिलाया। लेकिन मुझे एक उलझन है, उसने मानी खेज लहजे में कहा। आपको क्या उलझन है? वकार की बात ने उसे हैरान कर दिया। क्या तुम आज रात भी इसी सोफे पर सोने वाली हो? वो शरारत से बोला। नहीं, उसने मुस्कुराते हुए सर झुका लिया। अम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं जानती हूँ मैंने आपका दिल दुखाया है। यकीन जाने मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा आपकी तशवीश और बदगुमानी मेरे साथ ज़्यादती है। मैं कभी आपको दुख नहीं देना चाहती थी। मैं कैसे आपसे और अपनी बहन से रिश्ता ख़त्म कर सकती हूँ? मुझे एहसास है कि आपको मेरी कितनी ज़रूरत है, लेकिन आपको भी सोचना चाहिए था। मैं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आपको बेआसरा नहीं छोड़ूंगी। वो वकार के साथ आप सुबह ही अपने घर पहुँची और साबरा से माफ़ी मांग रही थी। शुरू में साबरा उसके साथ काफ़ी तल्ख रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल मोम पड़ना शुरू हो गया। वकार उसे पहली नज़र में ही बहुत अच्छा लगा। रोशनी को देखकर तो वो उसे पहचान ही नहीं सकी। वो इसके कीमती लिबास और महंगे जेवरात देखकर दंग रह गई, और उसके साथ ही साबरा की ये तशवीश भी ख़त्म हो गई कि रोशनी शादी के बाद उसे खर्चा नहीं देगी, बल्कि अब तो उसे यकीन था कि रोशनी उसे पहले से ज़्यादा सपोर्ट करेगी, और ये उसकी खाम ख्याली ही थी। आइमा कहाँ है? वो अपनी बहन का पूछ रही थी। वकार ऑफिस चला गया, उसे चंद ज़रूरी काम थे, और रोशनी 2 साल बाद अपने घर वालों से मिलकर इतनी खुश थी कि वो उसे चाहकर भी अपने साथ नहीं लाया था। आयमा यूनिवर्सिटी गई हुई है, 2 बजे तक आ जाएगी, साबरा ने उसे बताया। लेकिन जब 4 बजे तक भी आयमा की वापसी नहीं हुई तो मजबूरन रोशनी को वापस जाना पड़ा। वकार का ड्राइवर काफ़ी देर से उसका इंतज़ार कर रहा था। मैं उससे अगली बार मिल लूँगी अम्मी, साबरा को तसल्ली देती वो वहाँ से चली गई। साबरा ने उसके सामने ही उसे 2 बार कॉल की और रोशनी की आमद का बताया, लेकिन वो कह रही थी उसे यूनिवर्सिटी में कुछ काम है, उसे देर हो जाएगी। कॉफ़ी का कप साइड टेबल पर रखने के लिए वो झुकी। उसके लंबे बाल उसकी पूंछ पे फैले हुए थे। मुझे तुम्हारे बाल बहुत पसंद हैं। ज़रा आगे बढ़कर उसने रोशनी के बालों को चूम लिया। मुझे पता है। उसकी सीने पर थोड़ी टिकाए वो मुस्कुराती नज़रों से उसे देख रही थी। तुम्हें कैसे पता? उसके बालों में उंगलियां घुमाते उसने पूछा। नताशा ने बताया था, उसने शरारत से कहा। क्या बताया था नताशा ने? उसे कुछ हैरत हुई। यही कि आपने इसे मेरे बालों से मुतल्लिक हदायत दी थी कि वो उन्हें काटने या ख़राब करने की कोशिश न करें। यस, उसने मुतमिन अंदाज में कहा। इसने ये भी बताया कि मुझ पर डार्क मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये उसे शर्मिंदा करने की एक कोशिश थी, लेकिन वो उसे हरगिज़ मुतासिर नज़र नहीं आया। दैट वॉज हॉरिबल, वो कुछ सोचते हुए बोला। उसका अंदाज ऐसा था कि वो हंस पड़ी। नताशा को आपने मेरे बारे में क्या बताया था? मुझे कह रही थी अपनी शादी पे ज़रूर बुलाना। उसे अचानक याद आया। कुछ नहीं, बस यही कि तुम मेरी दूर की कज़न हो। हासिलपुर में रहकर तुम्हारी ग्रूमिंग नहीं हो सकी। अब शादी के बाद अमेरिका जाना है, इसलिए तुम्हारा मेकओवर करवाना है। काफ़ी कसिप लेते हुए वो उसे बता रहा था। एक और झूठ, स्टोरियाँ बनाने में काफ़ी महारत है आपको। वो हंस पड़ा था। अच्छा, मेरी अम्मी और छोटी बहन आपसे मिलने आना चाहती हैं। उसे साबरा के फ़ोन का ख्याल आया जो उन्होंने कल किया था, और आइमा अब इसके घर आने की ख्वाहिश रखती थी। आज रात तो मैं कराची जा रहा हूँ, फिर वहाँ से वापसी पे कल एक मीटिंग है, और परसों रिचर्ड आ रहा है, उसके साथ मुझे अगले दिन दुबई जाना है। अगले वीक बुला लो, उसने सोचते हुए कहा। फिर दुबई जा रही हैं? वो हैरत से बोली। डार्लिंग, वहाँ मेरा ऑफिस है और आधा महीना मेरा वहाँ गुजरता है। वैसे भी आजकल जो प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है उसकी वजह से पाकिस्तान से ज़्यादा वहाँ मेरी ज़रूरत है। तुम्हें लेके जाऊँगा फिर वहाँ, फिर देखना कितना बड़ा प्रोजेक्ट है वो, और मैं मसरूफ़ होने का ड्रामा नहीं कर रहा। उसकी थोड़ी को चूमते हुए वह बिस्तर से उठ बैठा था। कराची से वापसी पे वो उसे डिनर के लिए बाहर ले गया। आयशा आपी की कॉल आ रही है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अस्सलामुअलैकुम आपी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। ये बताओ रोशनी कैसी है? उसकी दुबई से वापसी हो गई या अभी वहीं है? तुमने तो उसे छुपा कर रखा हुआ है। उसकी बात सुनकर वो हंसा। रोशनी मेरे साथ ही है, ठीक भी है, अब खुद बात कर ले। फ़ोन उसका थमाकर वो खुद खाने की तरफ मतवजा हो गया। आयशा उससे काफ़ी देर बातें करती रही। इतने माह बाद उसकी आयशा से बात हो रही थी। कई बार आयशा ने उसका नंबर मांगा था, और वकार किसी न किसी तरह उसकी बात टाल जाता। उससे बात करते हुए रोशनी मुसलसल मुस्कुरा रही थी। आयशा के अलावा उसके दोनों बच्चों ने भी अपनी स्वीट मामी से बात की थी, और उसे बताया कि वो दोनों उसे कितना मिस कर रहे थे। अगले हफ्ते उसने साबरा और आइमा को डिनर पे बुलाया था। वो दोनों इस वक्त लाउंज में बैठी थी जब वकार घर में दाखिल हुआ। इन दोनों को देखकर उन्हें सलाम करते हुए वो अपने बेडरूम में चला गया। रोशनी के लिए वकार का इन दोनों को इस तरह इग्नोर करना हैरान कुन था। वो पिछली बार साबरा से बहुत खुलूस और अपनाई से मिला था। अम्मी, मैं अभी आती हूँ, उसने माजरत करती अपने कमरे में आ गई। वो फ्रेंच विंडो से स्विमिंग पूल को देख रहा था। रोशनी की तरफ उसकी पूछ थी। ज़िंदगी में अगर वो किसी चेहरे को दोबारा ना देखने की ख्वाहिश करता था तो वो एक चेहरा था। अगर वकार का बस चलता तो एक लम्हा भी उसे अपने घर में बर्दाश्त न करता। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश में उसकी मुठ्ठियाँ भिंची हुई थी, लेकिन अचानक रोशनी के नरम बाजू की मोहब्बत भरी गिरफ्त ने उसके तने हुए वजूद को मोम की तरह पिघला दिया। लगता है आप काफ़ी थके हुए हैं। अम्मी और आइमा आपसे मिलने आए हैं।
اس کی کمر میں اپنے بازو کا گھیرا ڈالے وہ اسے بتا رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آئمہ آپ سے ملنے کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھی، امی نے بہت تعریف کی ہے اس سے آپ کی۔ وہ اس کی خاموشی سے کوئی نتیجہ کیے بغیر بولی۔ وہ اب بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، ورنہ اسے اگلا سوال کرنے کی ہمت نہ کر پاتی۔ تم چلو، میں بس آ رہا ہوں۔ خود کو ریلیکس کرتے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ روشنی اس کی بات سن کر کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ کتنا فرق تھا ان دونوں بہنوں میں، ایک اتنی سادہ اور معصوم، دنیا کے ہر فریب سے پاک، جس کا خلوص اس کے لہجے سے چھلکتا تھا۔ اس کی بیرے آنکھوں میں اسے صرف سچ نظر آتا تھا، اور آئمہ دھوکے باز، لالچی، فلرٹ، جھوٹ کے سوا کچھ بھی تو نہیں تھا اس کا وجود۔ اور آج اس نے اس لڑکی کو اس کے ایک اور جھوٹ کے ساتھ پکڑا تھا۔ اسے اتنے دنوں میں ایک بار بھی اندازہ نہیں ہوا کہ آئمہ اور روشنی کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ وہ جس آئمہ کو 1 سال سے جانتا تھا، اس نے تو اپنا تعارف ایک امیر خاندان کی اکلوتی بیٹی کی حیثیت سے کروایا تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اسے رات کو اعظم کے ساتھ دیکھنے کے بعد اگلے دن وہ اس سے ملنے گیا تھا۔ تم میری کال ریسیو کیوں نہیں کر رہی تھی آئمہ؟ پچھلی رات سے وہ کئی بار اسے کال کر چکا تھا۔ وہ بہت مشکل سے اس سے ملنے پہ آمادہ ہوئی۔ میں مصروف تھی، اس نے لاپرواہی سے کہا، اور غالباً اس مصروفیت کا نام اعظم مسعود ہے۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مجھے یہ جان کر حیرت نہیں ہوئی کہ تم یہ سب جانتے ہو۔ اس کی ڈٹائی پر حیران ہوا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو آئمہ؟ کسی سے چند دن پہلے ملنے کے بعد تم میرے ساتھ اپنی 1 سال پرانی کمٹمنٹ کیسے ختم کر سکتی ہو؟ میں اعظم مسعود کو پچھلے 2 سال سے جانتی ہوں، میری فرینڈ کا کزن ہے وہ، کافی پرانی دوستی ہے اس کے ساتھ میری۔ تمہارا نمبر تو اس کے بعد آتا ہے، یاد ہے کیسے ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے تھے؟ میں نے سوچا چلو تھوڑے دن انجوائے کرتے ہیں، ورنہ کہاں تم اور کہاں اعظم مسعود۔ وہ تنفر سے بولی۔ یہ تم کہہ رہی ہو آئمہ، حالانکہ تم جانتی ہو تمہاری وجہ سے میں نے آپ ہی سے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے۔ تم راضی تھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے، اپنی والدہ سے بات کر چکی تھی، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہارے لیے وہ سب ٹائم پاس تھا۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے، اور یہ بات تم بھی جانتی ہو۔ وہ اس کی باتوں سے چکرا گیا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ یہ تمہارا مسئلہ ہے، اور تمہیں ایسا جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ مجھ سے بہت سے لوگ شادی کے خواہش مند ہیں، اب میں ہر کسی سے تو شادی کر نہیں سکتی۔ وہ طنزیہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اپنی یہ بے عزتی وہ مر کر بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ اسے اپنے سامنے بیٹھی اس حسن کی دیوی سے اس لمحے شدید نفرت ہوئی تھی۔ دکھ محبت میں ٹھکرائے جانے کا نہیں تھا، بلکہ شوق اس ذلت نے دیا تھا جو کسی کے ہاتھوں بے وقوف بندے سے ملتی ہے۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، ضدی، اسے سب چاہیے ہوتا جو ایک بار منہ سے نکال دیتی۔ وہ ذہین تھی، اسی وجہ سے سب گھر والوں کے دلوں میں اس کا نمایاں مقام تھا۔ روشنی اس کے برعکس پڑھائی میں کبھی بھی اتنی اچھی نہیں تھی۔ میٹرک تک اس کے گھر کے حالات دگرگو تھے، اور اس کی دنیا محدود۔ ایک سرکاری اسکول میں پڑھتے ہوئے اس کی باہر کی دنیا سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اس نے روشنی کو جان مارتے دیکھا تھا، چند ہزار کی نوکری کے لیے جوتیاں چٹکھاتے دیکھا تھا۔ اسے روشنی نہیں بننا تھا، وہ آئمہ تھی۔ اسے بہت کچھ حاصل کرنا تھا، وہ بھی بغیر جدوجہد کے۔ روشنی کی قناعت پہ اسے غصہ آتا تھا۔ اس کی ماں بھی روشنی کی طرح تھوڑے سے پیسوں پہ صبر شکر کرتی، اور وہ اندر ہی اندر ان کی اس حماقت پہ ہنستی تھی۔ روشنی دبئی چلی گئی تو گھر میں اچانک کھلا پیسہ آنے لگا۔ روشنی کے جانے کے بعد صابرہ مکمل طور پر اس کے ہاتھ میں تھی۔ حالات بدلے تو صابرہ کی سوچ بھی بدل گئی۔ کالج میں آ کر اس کا ملنا جلنا جس کلاس کی لڑکیوں سے ہوا، اس نے اسے اپنے موجودہ حالات سے اور بھی شاکی کر دیا۔ وہ ان جیسی بننا چاہتی تھی۔ لڑکوں سے اس کی پہلی دوستی 3rd ایئر میں شروع ہوئی۔ وہ اس کی کلاس فیلو کا بھائی تھا، اور اس پہ بری طرح فریفتہ تھا۔ اس کے ساتھ باتیں کر کے، گھوم پھر کے اسے اچھا لگتا تھا، لیکن وہ اس سے کوئی جذباتی وابستگی نہیں رکھتی تھی۔ وہ خود ابھی اسٹوڈنٹ تھا، اور اس کی مالی حالت بھی مستحکم نہیں تھی، پھر بھی وہ اس پہ کافی خرچہ کرتا تھا۔ وہ جلد ہی اس سے بور ہو گئی، کیونکہ وہ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ پھر یکے بعد دیگرے وہ چند اور لڑکوں سے دوستیاں کرتی رہی، اور پہلے کی طرح ان کے ساتھ گھومتی پھرتی رہی، لیکن یہ دوستیاں محض ہوٹلنگ اور سینما کی حد تک تھیں۔ اس وقت وہ صابرہ سے سہیلی کے ساتھ جانے کا یا کالج میں ایکسٹرا کلاسوں کا بہانہ کر لیا کرتی تھی۔ اعظم مسعود وہ پہلا شخص تھا جس سے ملاقات کے بعد وہ خود اس سے رابطے کی کوششوں میں لگ گئی تھی۔ وہ ایک MNA کا بیٹا تھا، اسسٹنٹ کمشنر تھا، اور بے تحاشا امیر و مضبوط بیک گراؤنڈ کا رکھتا تھا۔ اس سے آئمہ کی ملاقات روبی کے گھر ایک پارٹی میں ہوئی۔ وہ اس کا دور کا کزن تھا۔ اگلی بار وہ اسے ایک ہوٹل میں ملا، جہاں وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ ہائی ٹی کے لیے گئی ہوئی تھی۔ اس بار اعظم مسعود کو بھی اس میں دلچسپی پیدا ہوئی تھی۔ اسے ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ وہ اسے ایک اور دنیا سے متعارف کروا رہا تھا۔ آزادی و بے تحاشا دولت سے اس کا تعارف اعظم مسعود کی بدولت ہوا۔ اسے مہنگی مہنگی چیزیں خرید کے دیتا، پرفیوم، قیمتی سوٹ، 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانے، اور نئے نئے موبائل فون اسے اعظم کی مہربانی سے ملے تھے۔ اس میں ایک ایسا چارم تھا کہ اعظم جیسا گھاک اور فطرت شخص بھی پوری طرح سے اس کے قبضے میں تھا۔ اس میوزیکل کنسرٹ کے ٹکٹ بھی اسے اعظم مسعود نے ہی بھجوائے تھے، کیونکہ اس نے وہاں جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ وہ خود ایسی جگہوں پہ نہیں جاتا تھا، اور وہیں اسے وقار ملا۔ اسے وقار سے دوستی میں انٹرسٹ نہیں تھا، کیونکہ وہ اعظم مسعود جیسا حکم کا اکا گنوانا نہیں چاہتی تھی، لیکن وقار اس میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہا تھا۔ اعظم کی پوسٹنگ حاصل پور تھی، کون سا وہ اس کی نگرانی کرواتا تھا، اس لیے وقار کے ساتھ وقت گزاری میں کیا حرج تھا۔ اور پھر وقار
से भी उसे वही फ़ायदा मिल रहा था। वक़ार को उसने अपनी हकीकत नहीं बताई, उसे ज़रूरत भी नहीं थी। आज़म उसके बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ जानता था। रूबी की वजह से उसे पता चल जाता था, इसलिए उसे छुपाने का फ़ायदा नहीं था। शुरू में साबरा उससे इस महंगे तोहफ़े की वजह से सवाल जवाब करती। आहिस्ता आहिस्ता उसे भी ये सब काबिल कबूल हो गया था। यह ज़रूरी तो नहीं था कि वो लोग तमाम उम्र एक सी माशी हालात के साथ गुजर बसर करते। वक़ार को आयमा ने एक ऑप्शन के तौर पर रखा हुआ था, लेकिन जिस दिन आज़म मसूद ने उसे शादी के लिए प्रपोज़ किया, उसने वक़ार से पीछा छुड़वा लिया। डिनर टेबल पे भी वो खामोशी से बैठा था। वो बाहर आना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो रोशनी को हर्ट नहीं कर सकता था। साबरा के साथ वो मामूल के अंदाज में बातचीत करता रहा। आयमा की मैंने खेज़ मुस्कुराहट देखकर भी वो जानबूझकर उसे नज़रअंदाज कर रहा था। रोशनी यही समझ रही थी, वक़ार का उसे इग्नोर करना इसलिए है क्योंकि उसकी ज़िद और दबाव की वजह से रोशनी को क्लब जाना पड़ा। वो वक़ार की ज़हनी कैफियत से अनजान थी, जो इस वक्त सिर्फ ये सोच रहा था उसे किन अल्फाज में रोशनी को अपनी और आयमा के बारे में बताना है। वो नहीं चाहता था कि इससे पहले आयमा रोशनी को कोई बात बताए। वो आयमा से कुछ भी उम्मीद कर सकता था। रोशनी को लेकर आना बेटा, साबरा जाने से पहले उसे इनवाइट कर रही थी। रोशनी जानती थी वो बहुत मसरूफ़ है, और फिर वक़ार के और उनके स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो उसे वहाँ लेकर जाने के लिए इसरार नहीं कर सकती थी। अम्मी वक़ार बहुत मसरूफ़ हैं आजकल अपने काम के सिलसिले में, आप फ़िक्र न करें, कुछ दिन तक मैं खुद आ जाऊँगी आपसे मिलने। वो वक़ार को मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। मैं जितना भी मसरूफ़ हूँ तुम्हारे लिए वक्त निकाल सकता हूँ, उसकी तरफ प्यार से देखते हुए वो उसे कह रहा था। मुस्कुराते हुए बेख्तियार रोशनी ने अपना हाथ उसके बाजू पर रखा। ये इजहार तशक्कुर था जो वो खुद को मिलने वाले इस मान के बदले में इस वक्त करना चाहती थी। आप फिक्र न करें आंटी, हम जल्दी ही आपकी तरफ चक्कर लगाएंगे, वो अब साबरा से कह रहा था। आयमा चुपचाप खड़ी इन दोनों को देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ था जिसे रोशनी समझ नहीं पाई। इन लोगों को ड्राइवर के जरिए घर भिजवा कर वो दोनों अपने कमरे में आ गए। रोशनी, तुमसे कुछ बात करनी है। वो शीशे के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी जब वक़ार ने कुछ सोचते हुए अपनी बात शुरू की, लेकिन उसी पल उसका मोबाइल बजना शुरू हो गया। रिचर्ड की कॉल आ रही थी। इससे बात करते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। स्टडी में आकर उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने थे जो रिचर्ड से उसे ईमेल कर चुका था। इन फाइल्स को चेक करने के बाद वो एक बार फिर रिचर्ड को कॉल करने बैठ गया। अपने कामों से फारिग होकर जब तक कमरे में आया, रोशनी तकरीबन सो चुकी थी। वैसे भी रात काफ़ी हो चुकी थी। उसने सोचा वो उसे पहली फुर्सत में कल सब कुछ बता देगा, पर वो सुबह जल्दी ऑफिस चला गया और काफ़ी मसरूफ़ था। आप लंच पे घर आ जाए वक़ार, आपकी फ़ेवरेट डिश बना रही हूँ मैं, रोशी उससे फ़ोन पे कह रही थी। इसकी बात सुनकर वो मुस्कुराया। वो ऑफिस में काफ़ी बिजी था। अपने सामने पड़ी फाइलों से सर उठाकर उसने खुद को रिलैक्स करने के लिए सर कुर्सी की पुष्ट पे टिका दिया। अभी एक मीटिंग शुरू होने वाली है, इसके बाद घर आऊँगा, फिर लंच के बाद दोबारा ऑफिस, काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाएगा। वो सोचते हुए बोला, ओह मतलब आप नहीं आ सकते, उसने मुरझाए हुए लहजे में कहा। ऐसा क्यों नहीं करती, आप मेरे ऑफिस आ जाएं, आज मैं आपको अपनी फेवरेट जगह पर लंच करवा दूंगा। वो उसी के लहजे में उसे कह रहा था। और मेरे बनाए खाने का क्या होगा, वो मसनूई नाराज़गी से बोली। वो मैं डिनर में खा लूँगा। जवाब फ़ौरन आया, ठीक है फिर मैं आपके ऑफिस आ जाती हूँ। वो बखुशी राज़ी हो गई थी। उससे फ़ोन पर बात करके वो दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। इस लड़की में जादू था। कितनी भी थकन और मसरूफियत होती, वो इसे मिनटों में अपनी बातों से रिलैक्स कर देती। मीटिंग से फारिग होकर वो अपने ऑफिस में दाखिल हुआ जब उसकी सेक्रेटरी ने उसे एक लड़की के बारे में बताया जो उसे मिलना चाहती थी। तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? अपने दफ्तर में आयमा को देखकर उसका पारा चढ़ गया। वो उसकी हर धर्मी पे हैरान। मैं तुम्हें इतना बेवकूफ़ नहीं समझती वकार हसन, तुम मुझसे बदला लेने के लिए मेरी इस कमअकल बहन से शादी कर लोगे? लिसन आयमा, दिस इज़ माई ऑफिस, आई डोंट वांट टू लेट यू क्रिएट एनी सीन ओवर हेयर, जस्ट लीव इमीडिएटली। वकार उसे लंच पे बुला रहा था, इसलिए वो 1 बजे उसके ऑफिस पहुंची। वो यहाँ पहले भी आ चुकी थी, इसलिए किसी की मामलत के बगैर वो वकार के कमरे की तरफ भड़की। शीशे की कैबिन में बैठी वकार की सेक्रेटरी को देखकर उसने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, जो उसे देखकर अपनी कुर्सी से खड़ी होगी। उसे बैठने का इशारा करके वो वकार के कमरे का दरवाज़ा खोल रही थी जब अपने कानों में पड़ती आयमा की आवाज़ सुनकर वो ठटक गई। मुझे उसे देखकर तरस आता है, कैसे बच्चों की तरह वो इस लॉलीपॉप से बहली हुई है जिसे तुमने मोहब्बत का नाम दिया है। बेचारी ये भी नहीं जानती कि चंद माह पहले तक उसका मोहब्बत करने वाला शोहर मुझसे शादी करने के लिए मरा जा रहा था। मेरे लिए दीवाना था। मैं दिन कहती तो वो दिन दोहराता, और मेरे रात कहने पे उसकी रात होती थी। अब मैं ये कैसे मान लूँ कि अचानक तुम्हें मेरी बहन से मोहब्बत होगी, जो ना सूरत में मुझसे बेहतर है और ना उसके पास मेरी जैसी तालीम है। यकीनन ये सब कुछ मुझे जेलस करने के लिए ही किया गया होगा। वो तंजिया लहजे में बोली। आयमा तुम। इससे आगे वो कुछ कह नहीं पाया। दरवाजे के बंद होने की आवाज़ पे उसने चौंक कर देखा। मेरे कमरे के बाहर कौन था? इंटरकॉम पे वो अपनी सेक्रेटरी से मालूम कर रहा था। सर आपकी मिसिस थी। वकार के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसका दिमाग भग से उड़ गया। वो उसे सच बताना चाहता था, लेकिन ये सब इस अंदाज में उस तक पहुंचेगा, ये वो आखिरी बात थी जो उसने सोची थी। अपने मोबाइल से उसका नंबर डायल करते वो बाहर की तरफ भागा। आयमा उसके ऑफिस में है, उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो घर जा रहा था। अपनी शादी के पहले चंद हफ्तों में
اپنے رشتے میں آئی اس غلط فہمی کو اسے فوراً دور کرنا تھا۔ اس کا موبائل بند تھا۔ اس کا اس طرح وقار سے بغیر ملے چلا جانا اسے اپسیٹ کر رہا تھا۔ پتہ نہیں اس نے کتنی بات سنی تھی اور اس سے کیا نتیجہ حاصل کیا تھا، لیکن وہ حیران تھا چند منٹ میں وہ غائب کہاں ہوگی۔ اس نے ڈرائیور سے پوچھا، لیکن اس نے بھی اسے آفس ڈراپ کرنے کے بعد دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ گھر پہنچ چکا تھا، لیکن روشنی گھر پہ نہیں تھی۔ چند بار اس کے موبائل پہ کال کرنے کے بعد وہ صابرہ کی طرف چلا گیا۔ وہ اگر گھر نہیں آئی تو اپنی والدہ کے پاس گئی ہوگی، یہی سوچ کر وہ صابرہ کی طرف چلا گیا۔ روشنی وہاں بھی نہیں تھی۔ صابرہ اس کو دیکھ کر کافی پریشان ہو گئی۔ وہ حیران تھی کہ آخر ان دونوں کے درمیان ایسا کیا ہوا کہ روشنی اسے بغیر بتائے کہیں چلی گئی۔ بوجھل دل سے وہ وہاں سے نکلا۔ بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دراتے ہوئے اس نے کئی بار گھر کال کر کے ملازمہ سے روشنی کے بارے میں پوچھا۔ روشنی بی بی ابھی تک نہیں آئی۔ ہر بار کا دہرایا یہ جملہ اس کے کانوں سے ٹکرا رہا تھا۔ وہ ہر جگہ اسے تلاش کر چکا تھا، سوائے اپنے دفتر کی بیک سائڈ کے، جہاں وہ بہت دیر اکیلی بیٹھی رہی اور وہ پھر وہاں سے نکل کر ایک نزدیکی پارک میں آ گئی۔ تم وقار کو کب سے جانتی ہو؟ چند جملے جو اس کے کان تک پہنچے تھے، اسے وہ اتنا تو سمجھ گئی کہ آئمہ اور وقار ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں۔ وہ شوق کی کیفیت میں تھی۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ بہت دیر تک قریبی پارک میں بیٹھنے کے بعد وہ آئمہ کے پاس آ گئی۔ 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے۔ کیا رشتہ تھا تم دونوں کے درمیان؟ لہجہ سرد تھا۔ کیا یہ تمہیں وقار نے نہیں بتایا کہ اس کا میرا کیا رشتہ تھا؟ محبت کرتا تھا وہ مجھ سے، مرتا تھا دل و جان سے مجھ پر، شادی کرنا چاہتا تھا مجھ سے۔ جواب تنفر سے دیا گیا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں تم سے کیوں جھوٹ بولوں گی آپی؟ وہ تنک کر بولی۔ وقار بہت سی لڑکیوں سے ملتے ہیں، اپنے پروفیشن اور دوستانہ طبیعت کی وجہ سے ان کی کافی بے تکلفی ہے لڑکیوں کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ اسے نتاشا یاد آئی تھی۔ آپی تم اگر بے وقوفوں کی جنت میں رہنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں کم سے کم تم سے یہ جھوٹ نہیں بولوں گی کہ ہاں اس کے فرینڈلی رویہ کی وجہ سے مجھے غلط فہمی ہوگی۔ 1 سال میرے پیچھے پھرتا رہا ہے وہ، اپنی بہن سے یہاں تک کہہ چکا تھا کہ اس نے مجھ سے شادی کر لی ہے، کیونکہ وہ اس کی شادی اپنی نند کے ساتھ کروانے میں انٹرسٹڈ تھی۔ میرے اور اس کے درمیان تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہوئی، اس نے تم سے شادی کر لی۔ وہ جانتا تھا میں اسے اپنی بہن کے ساتھ دیکھوں گی تو جیلس ہو جاؤں گی، اس سے پیچ اپ کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں تو پہلے ہی اس کے ساتھ جھگڑے کے بعد کافی شرمندہ تھی۔ تمہیں اس کے ساتھ دیکھا تو مجھے اس پہ اور بھی ترس آیا۔ اب کہاں تم اور کہاں میں، یہ وقار کا سٹینڈرڈ تو نہیں ہے۔ تم جیسی سیدھی سادی اور معمولی شکل و صورت کی انٹر پاس بیوی اس کے سٹیٹس سے کہاں میچ کرتی ہے، لیکن مجھے تمہارے لیے بھی بہت افسوس ہوتا ہے۔ اسے کم از کم میری بہن کو ہتھیار نہیں بنانا چاہیے تھا۔ اور اسی بات پر اسے جھگڑا کرنے میں آج اس کے آفس گئی تھی۔ آئمہ کے انکشاف پہ اس نے ایک گہری سانس لی تھی۔ تو یہ تھی وہ وجہ جو وقار کو بازار میں بکتی ایک لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر اپنے گھر لانا تھا۔ کتنی تحقیر تھی آئمہ کی باتوں میں اس کے لیے۔ یہ وہی آئمہ تھی جس کے روشن مستقبل کے لیے اس نے اپنی زندگی مختص کر رکھی تھی، جس کی خوشیوں پہ وہ اپنا آپ قربان کر سکتی تھی۔ آج وہ اسے احساس دلا رہی تھی اس کی بہن معمولی صورت اور کم تعلیم یافتہ ہے، لیکن اس نے کچھ غلط تو نہیں کہا تھا۔ آئمہ ان تمام خصوصیات کی مالک تھی جو کسی بھی قابل اور کامیاب شخص کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ وہ سچ میں بے وقوفوں کی جنت میں ہی تو رہتی تھی جو یہ نہیں جان پائی کہ اس کا اور وقار کا کیا مقابلہ۔ وہ زمین تھی اور وقار آسمان، ان دونوں کا ملاپ کیسے ممکن تھا؟ زمین کتنی بھی خوبصورت ہو، اس کا آسمان سے کیا مقابلہ؟ آئمہ کی باتوں سے وہ ڈھہ گئی۔ بوجھل قدموں سے چلتی وہ وہاں سے نکل گئی۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں تم سے ابھی اور اسی وقت ملنا چاہتا ہوں۔ فون پہ اسے جگہ بتا کر وہ خود بھی آفس سے نکل گیا۔ اس سے بھی پہلے وہ وہاں موجود تھی، ہمیشہ کی طرح اٹریکٹیو، خوبصورت اور مغرور۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ مسکرائی۔ وہ جانتی تھی وقار اسے ضرور کال کرے گا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ حیرت سے مر جاتی۔ اب تک جتنے بھی لڑکوں سے اس نے دوستی کی تھی وہ سب اس کے لیے اتنے ہی بے چین تھے، اس کے ایک اشارے پہ کھنچے چلے آتے، اور یہ شخص تو اس پہ دل و جان سے فریختہ تھا۔ اس کے ساتھ گزرا ہوا وقت وہ کبھی بھول نہیں سکتی تھی، حالانکہ وہ بھی انہی بے وقوف مردوں کے قبیلے سے تھا جو لڑکیوں کی خوبصورتی اور ان کی اداؤں کے دیوانے ہوتے ہیں، اور اسے مردوں کو بے وقوف بنانا آتا تھا۔ شروع میں اسے وہ بس اچھا ٹائم پاس لگا تھا اور اس سے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اعظم مسعود بھلے فلرٹ تھا، لیکن اس جیسا سٹیٹس اور مضبوط بیک گراؤنڈ وقار کے پاس ہرگز نہیں تھا۔ پھر اعظم مسعود نے اسے شادی کی پیشکش کی تو وہ وقار سے پیچھا چھڑانے کی ترکیبیں سوچنے لگی، لیکن اس کا یہ کام اتنی آسانی سے ہو جائے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وقار نے اسے اعظم کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور خود ہی اس کی جان چھوڑ چکا تھا۔ اعظم کے ساتھ وہ بہت خوش تھی اور یہ خوشی قائم بھی رہتی اگر وہ وقار کے ساتھ روشنی کو نہ دیکھتی۔ ہتک سی ہتک محسوس کی تھی اس نے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وقار اسے چھوڑنے کے بعد اس کی معمولی شکل و صورت کی کم تعلیم یافتہ بہن سے شادی کر لے گا۔ تھا کیا اس میں؟ نہ لکس نہ تعلیم، ساری زندگی بسوں کے دھکے کھانے والی، چند ہزار روپے کے لیے خود کو ہلکان کرنے والی اس بے وقوف سی روشنی کو وہ وقار کے ساتھ دیکھ کے حیران رہ کے کتنے مان سے وہ اس کا ذکر کر رہی تھی، کس غرور سے وہ اس کے بازو پہ اپنا ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ وہ منظر دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگی، اس کے مہنگے کپڑے، قیمتی ڈائمنڈ اور وہ گھر جہاں وہ کسی ملکہ کی طرح بیٹھی تھی۔ حسد اور غصے میں وہ اس گھر سے نکلی جس روشنی کو ساری زندگی اس نے اثار و قربانی کرتے دیکھا تھا۔ آئمہ کو خوش کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ روشنی کو پریشان کر کے اسے مزہ آتا تھا، تسکین ملتی تھی۔ 50,000 کیا حیثیت رکھتے تھے اس کے لیے؟ وہ کسی سے بھی کہتی
तब भी उसके पास इतने बेशुमार कीमती तोहफ़े मौजूद थे जिन्हें बेचकर वो अपनी फ़ीस अदा कर सकती थी, लेकिन वो ऐसा क्यों करती? उसे लोगों को आजमाने में मज़ा आता था। अगर रोशनी ने उसकी ज़िम्मेदारी उठाई थी तो ये उसी को पूरी करनी थी। वो नहीं जानती थी रोशनी ने वो पैसे कहाँ से अरेंज किए, लेकिन उसकी सोच के मुताबिक उसने वो पैसे भिजवा दिए थे। लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया था जो वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। वो किसी सूरत रोशनी को वकार के साथ नहीं देख सकती थी। अचानक उसे वकार में दोबारा दिलचस्पी पैदा हो गई और अब उसे वकार चाहिए था। वकार की नाराज़गी उसकी तवक्का के मुताबिक थी, लेकिन वो जल्द उसे मना लेगी। वो उससे इतनी मोहब्बत करता था कि ज़्यादा दिन नाराज़ नहीं रह सकता था। और रोशनी को तो वो कुछ वो बता चुकी थी, इसके बाद अगर वकार उसे ना भी छोड़ता तो रोशनी उसे खुद छोड़ देगी। उसने बहुत सोच समझ के प्लानिंग की थी। वो कुर्सी खींच कर उसके मुकाबिल सामने बैठा बहुत गौर से उसकी तरफ देख रहा था। मैं जानती थी तुम मुझे ज़रूर कॉल करोगे, उसने एक अदा से कहा। तुमने ठीक सोचा, कॉल तो मुझे करनी ही थी। तुमसे एक मुलाकात तो ज़रूरी थी, वो संजीदगी से कह रहा था। बस एक मुलाकात? मैं तो समझी थी तुम्हें मुझसे बार बार मिलने में दिलचस्पी है, उसने मानी खेज अंदाज में कहा। तुमने गलत सोचा। आज के बाद ना मुझे तुमसे मुलाकात में दिलचस्पी है, ना ही तुम्हारी शक्ल देखने में कोई इंटरेस्ट है। मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ ये कहने के लिए बुलाया है, अगर तुमने मेरे या रोशनी के दरमियान आने की कोशिश की तो अपने अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। आज जो कुछ हुआ इससे तुम मेरे और रोशनी के दरमियान दरार नहीं डाल सकती, लेकिन मेरी तुम्हें वार्निंग है, रोशनी को मुझसे बदगुमान करने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। वो बहुत सख्त और हमवार लहजे में उसे कह रहा था। तुम इस बेवकूफ़, जज्बाती और मामूली सी लड़की के लिए मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हो? वो शौक की आलमी थी। मामूली वो नहीं, बल्कि मामूली तुम हो। जिस सूरत पे तुम्हें इतना गुरूर है, तुम्हें इसमें तुम्हारा अपना कोई कमाल नहीं। इस सूरत के पीछे छुपे अपने घनावने चेहरे को कभी मेरी नज़रों से देखो, तुम्हें खुद से नफरत हो जाएगी। तुम उसी दिन मेरे दिल से उतर गई थी आयमा, जिस दिन तुम मेरी नज़रों से गिरी थी। मैंने ज़िंदगी में अगर कोई दुआ सच्चे दिल से की है तो वो यही थी कि मुझे तुम्हारी शक्ल कभी देखनी ना पड़े। तुम हो क्या चीज़? तुम जैसी लड़कियां किसी इज्जतदार आदमी की बीवी तो क्या दाश्ता बनने के काबिल भी नहीं है। वो बहुत तलखी से कह रहा था और आयमा का गुस्से से बुरा हाल था। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारी दाश्ता बनने के भी काबिल नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसी बात करने की? तुम क्या समझते हो जिस रोशनी की खातिर तुम मुझे धुतकार रहे हो अब तुम्हारे साथ रहेगी? सब बता चुकी हूँ मैं उसे, और अपने और तुम्हारे बारे में। मैं जानती हूँ उसे, वो बहन है मेरी, और कितनी जज्बाती और बेवकूफ़ है इसका शायद तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं। आज जो उसे पता चला है उसके बाद वो खुद तुम्हें छोड़ देगी। उसे मुझसे ज़्यादा तुम पे एतबार नहीं है। वो गुस्से से पागल हो रही थी, ये सोचे बगैर कि इर्द गिर्द कितने लोग उसे देख रहे हैं। वो हंसजानी कैफियत में बोले जा रही थी। रोशनी मेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन तुम ये भूल जाओ कि मैं दोबारा कभी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करूँगा। इतनी बात कहकर वो कुर्सी पर धकेलता वहाँ से चला गया। गुस्से में अपनी उंगलियों को मरोड़ती वो उसे वहाँ से जाते देखती रही। वकार घर में दाखिल हुआ तो बुरी तरह डिस्टर्ब था। अपने कमरे में दाखिल होकर बेदिली से टाई के नॉट खोलते उसने अपना कोट बेड पे फेंका। पैटीप का दरवाज़ा खुला था और वो स्विमिंग पूल के किनारे गुमसुम बैठी थी। धीमे कदमों से चलता वो उसके करीब आया, लेकिन उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। कुछ कहे बगैर वो उसके बराबर बैठ गया। तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा था, वो धीमे लहजे में बोला। ज़िंदगी एक बार फिर बहुत उलझ गई है। जितना सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ सिरा हाथ ही नहीं आ रहा। उसका लहजा बहुत टूटा हुआ था। वो उसके चेहरे की तरफ देखे बगैर भी जानता था उसकी आवाज़ में लर्जिश का सबब उसके आंसू हैं। रोशनी, तुम मुझ पे एतबार करती हो? ये सवाल था या शिकायत? वो जान नहीं पाई। उसने मुंह उठाकर पहली बार वकार की तरफ देखा। वो उसे बहुत थका और बिखरा हुआ लगा। क्या ये शख्स नाकाबिले एतबार हो सकता है? क्या ये शख्स उसकी बहन से बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है? क्या ये शख्स उसकी बहन के कहने पे उसे छोड़ सकता है? बहुत सारे सवाल थे जो इस वक्त शाम की तरह फन उठाए उसके दिल में उठे थे, और इन सब का सिर्फ एक जवाब था, नहीं, ये धोखेबाज नहीं है। इसके हर लफ्ज़ पे उसे आंखें बंद करके यकीन था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ रोशनी, उसकी आंखों में देखते वो बहुत संजीदगी से कह रहा था। मुझे तुमसे मोहब्बत का बुर कैसे हुई मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम इन लोगों में से नहीं जो आपको पहली नज़र में अपना बना लेते हैं, बल्कि तुम ओस की तरह कतरा कतरा दिल में उतरी हो। जब तुम यहाँ थी मैं एक बार भी इस एहसास से नहीं गुजरा। मेरे कमरे में तुम्हारी मौजूदगी मुझे परेशान करती थी। मुझे अपनी प्राइवेसी में खलल महसूस होता, लेकिन जिस दिन तुम यहाँ से गई मैं तमाम रात सो नहीं पाया। बार बार मेरी नज़रों से खाली सोफे पर जाती और मैं उलझ जाता। उस स्विमिंग पूल के किनारे तुम्हें बैठे देखने की आदत जैसे हो गई थी। मुझे ये खाली जगह परेशान करती थी। चंद बार तुम्हारी हाथों की बनी काफ़ी का जायका मैं इफ़त बी की बनाई काफ़ी में खोजता, और हर बार मायूसी होती। आशा आपी को चाहकर भी मैं ये नहीं कह पाया कि तुम्हें छोड़ चुका हूँ, जैसा कि मैंने प्लान किया था। तुम्हारी हर चीज़ इस कमरे में तुम्हारी अमानत की तरह रखी रही। मेरी अलमारी में रखे तुम्हारे कपड़ों से लेकर मेरी ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा तुम्हारा परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स भी मैं वहाँ से हटा नहीं पाया। तुम्हारे जाने के बाद मैं कई बार दुबई आया, ये जानते हुए भी कि तुम वहाँ नहीं होगी। मैं 2 बार इस क्लब में गया,
मैं तुम्हारा पता जानता था, चाहता तो तुमसे मिल सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ये लगे कि मैं तुमसे स्पेशली मिलने आया हूँ। बेमकसद मॉल में घूमते हुए किसी सड़क पर चलते तुम कहीं अचानक मेरे सामने आ जाओ और मैं तुम्हें एक नज़र देख सकूं। ये बहुत बचकाना ख्वाहिश थी, लेकिन मैं अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था। और फिर मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि मैं तुम्हें बेपनाह चाहने लगा हूँ और तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। मैं तुमसे पहले किसी और लड़की को पसंद करता था, उससे शादी करना चाहता था। ये बात मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं तुम्हें इस बात से तकलीफ नहीं देना चाहता था। मैं खुद उस देखे और इंसल्ट को भूलना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि आयमा तुम्हारी बहन है, लेकिन जब मुझे ये पता चला तो मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता था। जहाँ तक आयमा से मेरी वाबस्तगी का ताल्लुक है, मैं उसे झुटला नहीं सकता। मैंने उसे सच्चे दिल से मोहब्बत की थी, लेकिन उसी दिन मेरे दिल से अपना मकाम खो चुकी थी जब मैंने उसे आज़म मसूद के साथ देखा। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करते वक्त वो ना मेरी ज़िंदगी में थी, ना मेरे दिल में। आयमा कहती है मैं आपके काबिल नहीं, मैं खूबसूरत नहीं हूँ और ना ही आपकी तरह आला तालीम याफ्ता। मैं किसी तरह भी आपके मेयार पे पूरी नहीं उतरती। वो गलत कहती है, तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो कोई, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ़ है। इसमें दुनिया दुनिया का सबसे हसीन जज्बा मोहब्बत भरा हुआ है। तुम हर तरह से वकार हसन की बीवी बनने के लायक हो। तुम्हें वो तमाम खुसूसियात है जो कोई भी शख्स अपनी बीवी में देखना चाहता है। ये सिर्फ मैं नहीं कहता, ये आयशा बीबी कहती हैं। तुमसे चंद दिन की मुलाकात में वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार करने लगी। उनके बच्चे तुम्हारे फ़ैन हो गए। खुद आयमा की नहीं, मेरी नज़रों से देखो रोशनी, फिर तुम्हें पता चलेगा तुम क्या हो। खुद को इस एहसास से कमतरी से निकालो कि तुम आयमा से किसी तौर कम हो, बल्कि आयमा का तुमसे कोई मुकाबला ही नहीं। वो झूठ और धोखे का पलंदा है, उसका हर लफ्ज़ झूठ है, उसकी हर अदा फरेब। मैं आयमा से नहीं तुमसे मोहब्बत करता हूँ रोशनी, मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ विकी। उसके कंधे पर सर टुकाए वो कह रही थी। वकार ने नरमी से अपने बाजुओं के घेरे में ले लिया। आधी रात को उसका मोबाइल मुसलसल बज रहा था। बेड साइड टेबल पर पड़ा अपना फ़ोन उठाकर उसने अधखुली आंखों से जल्दी बुझती स्क्रीन को देखा। साबरा की कॉल आ रही थी। अम्मी इस वक्त क्यों फ़ोन कर रही हैं? उसने जल्दी से कॉल रिसीव की। वकार ने पास पर लैंप ऑन किया। इस बेवक्त की कॉल से वो भी जाग गया था। हेलो अम्मी, रोशनी ने कहा। दूसरी तरफ साबरा बेतहाशा रो रही थी। अम्मी आप क्यों रो रही हैं? सब खैरियत तो है? वो परेशानी और खौफ की मिली जुली कैफियत में उससे पूछ रही थी। कुछ भी ठीक नहीं है रोशनी, तुम जल्दी से आ जाओ, वो रोते हुए उसे बता रही थी। क्या हुआ है अम्मी? आयमा तो ठीक है ना? आज़म मसूद ने आयमा के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया है। उसे लगा साबरा अपने हवास में नहीं है। वो दोनों उसकी कॉल आने के थोड़ी देर बाद ही उसके पास आ गए थे। वो रोते हुए उसे बता रही थी कि वो आयमा को कई दिन से मिलने के लिए बुला रहा था। आयमा उससे बात करने को भी तैयार नहीं थी। एक ही धुन सवार थी उसके सर पर कि उसे सिर्फ वकार से शादी करनी है। जिस दिन से उसने वकार को तुम्हारे साथ देखा था वो गुस्से से पागल हो गई थी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि वकार तुम्हारा नहीं, रोशनी का नसीब है। अपनी बहन का घर बर्बाद मत करो, लेकिन उस पर तो जैसे जुनून सवार था। हसद और गुरूर उस पर हावी हो गया। वकार को छोड़ने के बाद अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। आज़म मसूद से उसका बहुत झगड़ा हुआ। शदीद गुस्से के आलम में वो यहाँ आया था और फिर आयमा के ये कहने पर कि वो उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, वो गुस्से और जुनून में आ गया। इस वाक़े के बाद आज़म मसूद फरार हो चुका था। आयमा की हालत तशवीशनाक थी। वो अस्पताल में थी, बच गई थी, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह मस्क हो चुका था। साबरा के घर को हराम बरपा था, जैसे क़यामत टूट पड़ी हो। रोशनी साबरा को संभाल रही थी, लेकिन वो तो जैसे ढह गई। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं उसकी अच्छी तरबियत नहीं कर पाई, उसकी ज़िद के आगे हार मान गई। उसके दिखाए सब्ज़ बाग की लालच में आकर मैंने उसे खुली छूट दे दी। वो क्या कर रही है, किस किस से मिलती है, मैं सब जानती थी, लेकिन खामोश रही। वो पहली सीढ़ी पे पाँव रखे बगैर आखिरी सीढ़ी पे पहुंच जाना चाहती थी, और मैं उसे ये नहीं बता पाई कि आखिरी सीढ़ी से गिरने वालों को चोट भी ज़्यादा लगती है। सब कसूर मेरा है। अपनी एक बेटी को तो मैंने मेहनत की भट्टी में झोंक दिया और दूसरी के लिए अपना मेयार बदल दिया। वो अपने बाल नोच रही थी। सब मेरी गलती है। मैंने उसे अमीर और आज़ाद ख्याल लड़कों से दोस्ती करने से रोका नहीं। वो ये बातें पिछले 3 दिन में 10 बार दोहरा चुकी थी। रोशनी 3 दिन से उनके पास थी। इन 3 दिनों में उस पर वो सब इंकशाफ हुए जिससे पिछले 2.5 साल से वो बेखबर थी। उसे साबरा से शिकायत थी, लेकिन उसकी माँ थी और गम से निढाल। वो उससे बहुत मोहब्बत करती थी, उसके साथ उसके दुख में शरीक थी। खुद को संभाले अम्मी, जो हो गया उस पर अफसोस ही किया जा सकता है। कुछ बातें अपने वक्त पर ना हो तो महज पछतावा रह जाता है। गलत रास्तों पर चलने का अंजाम सही कैसे हो सकता है? वो साबरा को कहे बगैर नहीं रह पाई थी। आयमा को माफ़ कर देना रोशनी। साबरा के लफ्ज़ उसके दिल में निश्तर की तरह चुभे। वो अब भी उसी की हमायत कर रही थी, लेकिन वो आयमा को कैसे माफ़ कर दे? उसने उसे तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो अंजाम भुगत चुकी थी, लेकिन उसका दिल शायद इतना बड़ा नहीं था कि वो उसे माफ़ कर पाए। कुछ वक्त लगेगा उसे भूलने में कि उसकी सगी बहन ने उसके साथ कितना बुरा करने की कोशिश की। वकार आज उसे लेने आया था। पिछले दिनों वकार ने उसका बहुत साथ दिया। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस अभी तक आज़म मसूद को ढूंढ नहीं पाई थी, और ये वकार था जिसकी बदौलत वो दोनों माँ बेटी पुलिस के चुपते हुए सवालात से बच पाई थी। अस्पताल में आयमा का बेहतरीन इलाज भी उसकी बदौलत हो रहा था, और वो ये सब रोशनी की वजह से कर रहा था।
چلے روشنی، وقار دروازے پہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے اپنے گھر واپس جانا تھا، وہ گھر جس کی بنیاد اس نے خلوص اور محبت سے رکھی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔